नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग नर्व्स आर रिलेटेड टू मैंडिबल एक्सेप्ट व्हाट? देखो, लिंगुअल नर्व रिलेटेड टू मैंडिबल, ऑरिकोटेम्पोरल नर्व रिलेटेड टू मैंडिबल, मेंटल नर्व रिलेटेड टू मैंडिबल, बट कॉर्डा टिम्पैनी जो होती है दैट इज नॉट related to mandible क्योंकि it is a branch of facial nerve. It carries preganglionic secretomotor fibers to submandibular and sublingual gland and is the gustatory to anterior 1/3 of the tongue. Okay. Next, positive FISH test in breast carcinoma means what? It means that there is excessive production of HER2 proteins. जो FISH test होता है that is fluorescence in situ hybridization test that checks the DNA of the cells for extra copies of HER2/NEU gene detecting the breast carcinoma. Okay. Next, acute respiratory distress syndrome जो होता है that is due to improper function of what? इसमें सर्फेक्टेंट ढंग से नहीं बन पाते हैं. फोटो ऐसी दे रखी है, ठीक है, ARDS की फोटो ऐसी दे रखी है, इसमें सर्फेक्टेंट नहीं बन पाते हैं लंग्स के ऊपर. सर्फेक्टेंट कैन बी गिवन टू द बेबीज लंग्स टू रिप्लेस व्हाट दे डू नॉट हैव. ठीक है, दिस इज नॉट गिवन डायरेक्टली डाउन द ब्रीदिंग ट्यूब बट किसी न किसी और सप्लीमेंट के थ्रू हम सर्फेक्टेंट्स देते हैं. इट इज सीन इन प्री मैच्योर बेबीज मोर. ठीक है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम दैट इज RDS, इट अकर्स इन प्रीमैच्योर बेबीज हुज लंग्स आर नॉट फुली डेवलप्ड. रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द बेबी नॉट हैविंग एनफ सर्फेक्टेंट इन द लंग्स. ठीक है, नेक्स्ट, the following picture depicts the autoimmune disease which affects the nerves and is triggered by viral and acute bacterial infection. देखो, माइलिन शीथ यहाँ पे पूरी की पूरी डैमेज होती जा रही है. माइलिन शीथ इज गोइंग फुली डैमेज्ड. तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है कि अंदर वाला फाइबर जो होता है वो एक्सपोज होना शुरू हो जाता है. इट इज सीन इन गुलियन बार सिंड्रोम. गुलियन बार सिंड्रोम या फिर गी या बू रे सिंड्रोम में इट इज a rare disorder in which your body's immune system attacks your own nerves, weakening your body, and weakness causes tingling sensation in your extremities that are usually the first symptoms in Guillain-Barré syndrome. Next, identify the generation of rotary file. ये जनरेशन ऑफ रोटरी फाइल इसका बताना है. बीच में एक स्क्वायर है, साइड में गोलाकार है, मतलब क्रॉस सेक्शन बीच का स्क्वायर है, बाकी जो पीछे का लास्ट तक जाते जाते वो गोलाकार होता जा रहा है. तो इसका बताने कौन सी जनरेशन है? इट इज 5th जनरेशन. Protaper next. It is the innovative 5th generation off-centered rectangular cross-section gives the file a snake-like swaggering movement as it moves through the root canal. The off-centered cross-section and the unique design of the file, they generate a enlarged space of De Vries-Hawley. ठीक है, the image shows cross-section of a protaper next. The 5th generation of shaping files has been designed in such a way that the center of mass and or center of rotation of the offset are slightly फ्रॉम द सेंटर, मतलब स्लाइटली थोड़ा सा साइड की कटिंग करेगा और एक साइड से खाली रहेगी. इन रोटेशन द फाइल्स हैव प्रोड्यूस्ड एन ऑफसेट डिजाइन टू प्रोड्यूस अ मैकेनिकल वेव मोशन दैट ट्रेवल्स अलोंग द एक्टिव लेंथ ऑफ द फाइल लाइक द प्रोग्रेसिवली परसेंटेज टेपरिंग design of any protaper file. This offset design serves to minimize the engagement between the file and the dentine. ये जो डिज़ाइन है वो फाइल और डेंटिन के बीच में ज़्यादा अच्छे से एंगेज होने के लिए बनाया गया है. नेक्स्ट, विच ग्लैंड इज मोस्ट ससेप्टेबल टू सलाइवरी कैलकुला? देखो, अगेंस्ट द ग्रेविटी कौन सिक्रेशन कर रहा है? सब मैंडिबुलर ग्लैंड अगेंस्ट द ग्रेविटी सिक्रेशन कर रहा होता है. तो दैट इज मोस्ट कॉमनली द ग्लैंड दैट इज फॉर salivary calculi. The concentration of calcium in the saliva produced by the submandibular glands is twice of that of the saliva produced by the parotid gland. The submandibular gland's saliva is also relatively alkaline and more mucinous rather than any other gland. इसलिए यहाँ पे calculi formation ज़्यादा हो सकती है. Next, about the levels of prevention. 2 स्टेटमेंट दिए इन्होंने. स्टेटमेंट 1 कह रही है कि classification does not focus on etiology and risk factors. ठीक है, और दूसरी स्टेटमेंट कह रही है कि there is a overlap in classification and it is difficult to distinguish where one category ends and other category begins. मतलब क्लासिफिकेशन में हमारे पास ओवरलैप भी है, तो हमें डिस्टिंग्विश करने में दिक्कत आ सकती है कि एक कैटेगरी कहाँ एंड कर रही है और दूसरी कैटेगरी कहाँ बिगिन कर रही है. ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं. नेक्स्ट, लेवल ऑफ प्रिवेंशन इज इनकंसिस्टेंट ड्यू टू व्हाट? Level of prevention, it is inconsistent due to clinical preventive services in the individuals who are not necessarily representative of the population. ठीक है. Next, progressive lowering of the threshold for pre-disease by selling more medications for prevention. Next, by making boundaries between prevention and cure indistinct. आप प्रिवेंशन और क्योर के बीच की बाउंड्री ही खत्म कर दे रहे हैं. दूसरी, आप थ्रेशोल्ड ही कम कर दे रहे हैं. ठीक है, बाय सेलिंग मोर मेडिकेशंस फॉर प्रिवेंशन. ठीक है. तीसरे में आप क्लिनिकल प्रिवेंटिव सर्विसेज उन लोगों को भी दे दे रहे हैं जो कि उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट भी नहीं कर रहे हैं. ठीक है, उन लोगों को वो बीमारी होने का चांस कम है लेकिन आप उसको भी बीमारियां देते जा रहे हैं, उसको भी क्लिनिकल प्रिवेंटिव मेजर्स दे रहे हैं. दीज आर लेवल्स ऑफ
prevention that are inconsistent. ठीक है, over time the definition of prevention has expanded so that its meaning in context of health services is now unclear, as the risk factors are increasingly considered to be equivalent to the diseases. For purposes of intervention, the concept of prevention has lost all the practical meaning. हम रिस्क फैक्टर को ही डिजीज मानना शुरू कर दे रहे हैं, इसी की वजह से हमारा जो प्रिवेंशन का कंसेप्ट है उसका प्रैक्टिकल मीनिंग जो है वो लूज होता जा रहा है. नेक्स्ट, बायोनीटर इज व्हाट? बायोनीटर इज अ टूथ बॉर्न पैसिव अप्लायंस. बायोनीटर क्या चीज़ होती है? इट इज अ टूथ बॉर्न पैसिव अप्लायंस. क्लासिफिकेशन फंक्शनल अप्लायंस में हमारे पास टूथ बॉर्न एक्टिव आता है, टूथ बॉर्न पैसिव आते हैं, और टिश्यू बॉर्न पैसिव आते हैं. टिश्यू बॉर्न पैसिव अप्लायंस में आता है फ्रैंकल. फंक्शनल रेगुलेटर्स अप्लायंस जो होते हैं वो टिश्यू बॉर्न पैसिव होते हैं. टूथ बॉर्न पैसिव में आता है एक्टिवेटर और बायोनीटर. टूथ बॉर्न पैसिव इज एक्टिवेटर एंड बायोनीटर. और टूथ बॉर्न एक्टिव में आते हैं एक्सपेंशन स्क्रू. ठीक है, नेक्स्ट ये इमेज दे रखी है. ठीक है, इसमें पूछा है ये अप्लायंस कौन सा है? इट इज बायोनीटर. ठीक है, सिंपल बायोनीटर की इमेज दे रखी है और पूछा है कौन सा अप्लायंस है? दैट इज बायोनीटर. नेक्स्ट, पेशेंट हैज अ बी स्टिंग. पेशेंट को बी स्टिंग हुआ है, उसके बाद एनाफिलेक्टिक रिएक्शन हो गया. विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडीज इन्वॉल्व इन दिस मैकेनिज्म? इसमें सबसे ज़्यादा कॉमनली इन्वॉल्व एंटीबॉडी जो होगा वो IgE होता है. कभी भी अगर एनाफाइलैक्सिस होती है तो इनिशियल राइज बहुत ज़्यादा शार्प होगा, उसके बाद ये धीरे धीरे करके डिक्रीज कर जाता है. नेक्स्ट, अ कैजुअल एसोसिएशन रिक्वायर्स दैट एक्सपोजर टू अ प्यूटेटिव कॉज मस्ट प्रोसीड टेम्पररली द ऑनसेट ऑफ द डिजीज. मतलब किसी भी कॉज से पहले, कोई भी कॉज है तो उससे कोई ना कोई डिजीज होनी चाहिए, ये बोल रहा है. विच वॉज प्रपोज टू प्रोड्यूस टू अलाउ फॉर any necessary period of induction and latency. This describes as casual association described by, और इस पूरी स्टेटमेंट का मतलब है exposure must precede outcome. This type of casual association is described by what? It is known as temporal association. Temporal association का मतलब होता है कि अगर exposure हुआ है तो उसका कोई ना कोई outcome निकल के आना चाहिए. Next, which of the following refers to a scientific retraction? देखो, साइंटिफिक रिट्रैक्शन का मतलब होता है क्योंकि कोई आपने आर्टिकल पब्लिश कर दिया, उसको वापस लेना है आपने. ठीक है, इट इज द रिमूवल ऑफ पब्लिश्ड आर्टिकल फ्रॉम एकेडमिक जर्नल बाय द पब्लिशर. दैट इज नोन एज साइंटिफिक रिट्रैक्शन. ये जो एडिटोरियल बोर्ड होता है जो उसको पब्लिश कर रहा है वो डिसाइड करता है. ठीक है, अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है या उसके ऊपर कोई चैलेंज हो गया या फिर कोई कॉपीराइट बजी है या फिर पैसे नहीं दिए बंदे ने, तब. Next, clinical trial design in which each patient receives both interventions is known as what? It is known as crossover design. Crossover design का मतलब है कि आपने दो ग्रुप लिए. ठीक है, ए ग्रुप है, बी ग्रुप है. ए ग्रुप को पहले आप ड्रग दे रहे हो और बी ग्रुप को आप सेम स्टडी के लिए प्लेसिबो दे रहे हो. फिर आधी स्टडी के बाद आप क्या करोगे? ए ग्रुप को ड्रग देना शुरू कर दोगे, बी ग्रुप को प्लेसिबो से स्विच कर दोगे. अब आप चेंज नोटिस करोगे. ठीक है, दैट इज नोन एज क्रॉस ओवर डिजाइन. ठीक है, दैट इज क्लिनिकल ट्रायल डिजाइन इन विच बोथ इंटरवेंशंस आर रिसीव्ड बाय ईच पेशेंट्स इन द ग्रुप. दैट इज नोन एज क्रॉस ओवर डिजाइन. Next, a method of analyzing results in which all the participants are analyzed according to the group they were originally assigned to, regardless of what the treatment is, if any they received, is known as what? It is known as intention to treat analysis. ठीक है, इंटेंशन टू ट्रीट मतलब इंटेंशन हमारा है कि ठीक करना है बंदा. दैट एनालिसिस इज द मेथड फॉर एनालाइजिंग रिजल्ट्स इन अ प्रोस्पेक्टिव रैंडमाइज्ड स्टडी वेयर ऑल द पार्टिसिपेंट्स who are randomized are included in a statistical analysis and analyzed according to the group they were originally assigned to, regardless of which treatment they received. ठीक है, this method allows investigator or the consumer of the medical literature to draw accurate unbiased conclusions regarding the effectiveness of the intervention. This method preserves the benefit of randomization, which cannot be assumed when using other methods of analysis. ठीक है, मतलब इसमें आप इंटेंशन टू ट्रीट कर रहे हो और उसको एनालाइज कर रहे हो पूरे अपने प्रोसेस को. ठीक है, नेक्स्ट, टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑन अ डिजीज रिस्क, इट इज बेस्ट टू स्टडी व्हाट? अगर हमें जेनेटिक और इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस को किसी डिजीज के रिस्क के साथ एसोसिएट करना है तो इट इज़ बेस्ट टू स्टडी द माइग्रेंट पॉपुलेशन. कि जो पॉपुलेशन आई है क्या वो कोई बीमारी लेके आई थी या नहीं लेके आई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कर्व मीन्स थ्रेशोल्ड कर्व? ROC कर्व जो होता है उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड कर्व. ठीक है, ROC कर्व इज हमारा रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व. ठीक है, इट इज द सेंसिटिविटी वर्सेस स्पेसिफिसिटी कर्व. ठीक है, जिसको हम रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व बोलते हैं. नेक्स्ट, इन रैंडम इफेक्ट ऑफ मेटा एनालिसिस द एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन अमंग द इफेक्ट्स ऑब्जर्व्ड in different studies between study variance
is represented by what? It is represented by tau square and I square. किससे represent होता है? tau square और I square से. The random effects of meta-analysis, the extent of variation among the effects observed in different studies between the study variants is referred to as tau squared. That is tau बनाया है सिंबल से और उसका स्क्वायर कर दिया इन्होंने. ठीक है. उसके बाद tau square represents the absolute value of total true variance, that is heterogeneity. ठीक है. Researchers even often use I2 index for quantifying the dispersion of effects of sizes in the meta-analysis. Next, patient is on dental chair. During extraction, he becomes unconscious. Patient is breathing but not responsive. तो आप क्या करोगे? You will recline the chair, shout for help and administer oxygen. Patient has gone into syncope. Patient should be placed in the reclined or Trendelenburg position, जिसमें कि head down position होती है, head पीछे को जाना चाहिए. Aromatic spirit like ammonia inhalation, it helps in stability of respiration by acting as a stimulant. Oxygen and other vasopressor drugs are administered if the condition still persists. Next, cyclosporin A acts by what? It acts by inhibition of calcineurin. Calcineurin की inhibition करवाता है cyclosporin A. Cyclosporin A enters the target cells and bind to the proteins called as cyclophilin. The complex then binds to and inactivates the enzyme calcineurin, which is involved in transcription of cytokine gene in the antigen activated cells. ठीक है. हेल्पर टी सेल्स के अंदर जो जीन्स होती है उनको इनएक्टिवेट करवा देता है, उनकी ट्रांसक्रिप्शन को इनएक्टिवेट करवा देता है. ठीक है. हेंस इट इज सिलेक्टिवली सप्रेसिंग द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इन द बॉडी. नेक्स्ट, व्हाट डजंट कॉज एलर्जी? देखो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है वो एलर्जी कॉज नहीं कर सकता, ज़्यादातर केसेस में नहीं करता है. सोडियम हाइपोक्लोराइड करता है क्योंकि क्लोरीन प्रेजेंट होता है. क्लोरेक्सिडिन करता है, पोटेशियम आयोडाइड करता है. ठीक है. आयोडीन से कईयों को एलर्जी होती है, टिंचर ऑफ आयोडीन से एलर्जी होती है, क्लोरेक्सिडिन से होती है. दीज आर पोटेंशियल हेप्टान्स. ओके. एलर्जिक रिएक्शंस एसोसिएटेड विद सोडियम हाइपोक्लोराइड, दैट इज मॉडिफाइड Dakin's solution, are uncommon, but they have been reported. Potassium iodide is known to be associated with allergic reactions according to the Grossman. Next, amount of sodium fluoride in fluoridated children mouth rinse is how much? 0.05% होता है. Fluoridated toothpaste जो बच्चों के लिए दे रहे हैं उसमें 0.05% sodium fluoride present होता है. ठीक है. Next, a child with following histology shows fibrin deposits and shortness of breath. फाइब्रिन डिपॉजिट है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, कफ है, अलॉन्ग विद वाइट और पिंक फ्रॉथी स्प्यूटम. वाइट और पिंक फ्रॉथी स्प्यूटम है. फटीग है, फीवर है, अब्डोमिनल पेन्स है, इन अलॉन्ग विद पैनक्रियाटाइटिस. द चाइल्ड सफर्स फ्रॉम व्हाट? चाइल्ड की जो इमेज है, हिस्टोलॉजिकल इमेज, वो ऐसी आ रखी है. ठीक है. सो चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ARDS. ठीक है. ARDS से सफर कर रहा है चाइल्ड. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द बायलेबियल साउंड्स. बायलेबियल साउंड्स कौन सी होती हैं? B, P, M, जिनमें दोनों होंठ जो है वो एक दूसरे के साथ टच होते हैं, दैट इज नोन एज बाइलेबियल साउंड्स. नेक्स्ट, थियामीन इज अ कोएंजाइम फॉर व्हाट? थियामीन इज अ कोएंजाइम फॉर पायरुवेट कार्बोक्सिलेज. Pyruvate carboxylase is the biotin containing enzyme that catalyzes bicarbonate and magnesium ATP dependent carboxylation of pyruvate to form oxaloacetate. ठीक है. और thiamine is coenzyme for pyruvate carboxylase. Next, the third part of vertebral artery begins at what? Third part of vertebral artery, it begins at C2. ठीक है. सर्वाइकल 2 पे हमारा फोरामेन ट्रांसफर सीरियम होता है, जहाँ पे थर्ड पार्ट ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी बिगिन करती है. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एरिया दैट इज मार्क्ड इन द स्ट्रक्चर. अब इसमें मार्क्ड पता नहीं क्या है, जो फोटो दे रखी है इसमें इस्चियम मार्क्ड है. ठीक है. इस्चियम आपको अलग अलग चीज़ें देखनी है. इसमें स्कोरेटिक जॉइंट है, इलियक क्रेस्ट है, इलियम है, इस्चियम है, प्यूबिस है. ठीक है. प्यूबिक सिम्फाइसिस जहाँ पे दोनों मिलेंगी, फीमर है, कॉसिक्स है, सैक्रम है. ठीक. नेक्स्ट, हीमोस्टैटिक इन द केस ऑफ मैक्सिलो सर्जरीज इज व्हाट? जेल फॉर्म हम यूज करते हैं एज अ हीमोस्टैट इन द केस ऑफ मैक्सिलोफेशियल सर्जरीज. द लोकली एक्टिंग हीमोस्टैटिक एजेंट्स जनरली वर्क बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ वेसोकंस्ट्रिक्शन, सीलिंग vessels, vascular channels और promoting the platelet aggregation. जेल फॉर्म फाइजर कंपनी का है, incorporated with न्यूयॉर्क USA, ऐसे बकवास दिया. एंड सर्जिकल एथिकॉन इनकॉपरेटेड, सर्जरी सेल होता है एक, एथिकॉन इनकॉपरेटेड, ये भी USA का है, which work proximally in the intrinsic coagulation pathway by contact activation and has been used in dentistry for many decades and remain the major hemostatic agents that are used in oral surgery. Next, the time between disease initiation
एंड द डिजीज डिटेक्शन इज नोन एज व्हाट? डिजीज इनिशिएट और डिटेक्ट होने के बीच में जो टाइम पीरियड होता है दैट्स नोन एज इंक्यूबेशन टाइम. इंक्यूबेशन टाइम इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द इनिशियल कॉन्टैक्ट एंड एन इन्फेक्शियस एजेंट एंड द अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट साइन और सिम्टम ऑफ द डिजीज इन क्वेश्चन. ठीक है. नेक्स्ट, एट 47 डिग्री सेल्सियस ह्यूमन शो व्हाट? 47 डिग्री सेल्सियस पे ह्यूमन जो है वो थर्मल रेडिएशन शो करना स्टार्ट कर देते हैं. When the ambient temperature rises, excess heat is released by conduction, that is the release of heat by the skin when direct contact with other material it occurs. ठीक है, वो कन्वेक्शन होती है. ठीक है, कंडक्शन कन्वेक्शन दो चीज़ों से हम जो अपनी हीट को रेडिएट करना शुरू कर देते हैं. नेक्स्ट, इन टैक्सोनॉमी ऑफ नीड्स, एक्सप्रेस नीड क्या होती है? एक्सप्रेस नीड वो नीड होती है दैट इज फेल्ट नीड दैट इज टर्न इनटू एक्शन. एक्सप्रेस नीड और डिमांड, एक्सप्रेस डिमांड इज द फेल्ट नीड टर्न इनटू एक्शन. अंडर दिस डेफिनेशन टोटल नीड इज डिफाइंड एज द नीड ऑफ दोज पीपल हु डिमांड अ सर्विस. ठीक है, ऐसे लोग जो कि सर्विस को डिमांड कर रहे हैं उसके बेसिस पे हम जो है सर्विस को फुलफिल कर रहे हैं, उस नीड के बेसिस पे हम सर्विस को फुलफिल कर रहे हैं, दैट इज नोन एज एक्सप्रेस्ड नीड. जो लोगों ने डिमांड की उसको फुलफिल किया. नेक्स्ट, टैक्सोनॉमी ऑफ नीड्स में एक्सप्रेस्ड नीड is what? It is felt need turned into action. ठीक है, it will be the felt need that is turned into action. Next, which of the following is not seen in necrotizing ulcerative periodontitis? Necrotizing ulcerative periodontitis में pocket formation नहीं होती. ठीक है, mobility होगी, tooth loss हो सकता है, recession हो सकता है, but there will be no pocket associated with necrotizing ulcerative periodontitis. Next, आपको एक इमेज दे रखी है. ठीक है, फिर बोला है कि इसमें जो वैक्स अप जो हम कर रहे हैं, नेम द विजिबल कंपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग वैक्स अप. ये वैक्स अप में हमारे पास मेजर कनेक्टर है, माइनर कनेक्टर है एंड डायरेक्ट रिटेनर है. ठीक है, मेजर कनेक्टर दो जो ब्लू कलर में दिखाया हुआ है दैट इज अ मेजर कनेक्टर. माइनर कनेक्टर जो ग्रीन कलर में है, लाइट ग्रीन कलर में, और उसके बीच में हमारे पास डायरेक्ट रिटेनर जो है वो सी क्लास की तरह दिखाए गए. ठीक है. नेक्स्ट, सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्ट इज सीन इन ऑल एक्सेप्ट व्हाट? सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्ट आपका सलाइवरी ग्लैंड में दिखाई देता है, थायराइड में दिखाई देता है, प्लेसेंटा में दिखाई देता है, बट सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्ट इज नॉट सीन इन पिट्यूटरी ग्लैंड. नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ पैसिनियन कार्पसल इज व्हाट? फंक्शन ऑफ पैसिनियन कार्पसल्स इज प्रेशर सेंसिटाइजेशन. पैसिनियन कार्पसल का जो फंक्शन होता है दैट इज प्रेशर सेंसिटाइजेशन. नेक्स्ट, कटिंग गॉज ऑफ के फ्लेक्स फाइल इज व्हाट? के फ्लेक्स फाइल में रोम्बस स्टेम होती है, रोम्बॉइडल स्टेम होती है उसकी के फ्लेक्स फाइल के अंदर. इट फैसिलिटेट्स द रिमूवल ऑफ डेब्रिस बाय इंक्रीजिंग द क्लियरेंस बिटवीन द फाइल एंड द डेंटिनल वॉल. शार्प रोम्बस एंगल्स दे इम्प्रूव द कटिंग एफिशिएंसी. इसका जो साइज है वो रेंज करता है फ्रॉम 6 गॉज टू 80 गॉज. 6 गॉज से लेकर 80 गॉज तक हमारा जो साइज है वो डिफर करता है. इट्स अ ट्विस्टेड इंस्ट्रूमेंट. ठीक है. नेक्स्ट, लेंथ ऑफ पीजो रीमर यूज्ड इन मैंडिबुलर मोलर इज व्हाट? लेंथ ऑफ पीजो रीमर दैट इज यूज्ड इन मैंडिबुलर मोलर इज 28 to 32 मिलीमीटर. स्टैंडर्ड पीजो रीमर जो होता है वो 32 मिलीमीटर का होता है इन लेंथ, और शॉर्टर पीजो रीमर जो होता है वो 28 मिलीमीटर इन लेंथ का होता है. ठीक है. नेक्स्ट, फॉलोइंग जीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपोहाइड्रोटिक एक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया. हाइपोहाइड्रोटिक एक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया के लिए PAK1 जीन, PAK1 जीन, PAK1 जीन जो होती है दैट इज रिस्पॉन्सिबल. नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट आर ऑल एक्सेप्ट व्हाट? एंड डायस्टोलिक जो वॉल्यूम होती है वो अफेक्ट करती है कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट को. मायोसाइट इंट्रासेलुलर कैल्शियम अफेक्ट करता है कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट को. प्रीलोड अफेक्ट करता है कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट को, बट पोटेशियम मूवमेंट डज नॉट अफेक्ट द कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट. कॉन्ट्रैक्टिलिटी इज द चेंज इन द पीक आइसोमेट्रिक फोर्स दैट इज आइसोमेट्रिक प्रेशर एट अ गिवन इनिशियल फाइबर लेंथ दैट इज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम. फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रीलोड, आफ्टरलोड, हार्ट रेट एंड कैल्शियम अपटेक, ये सारे फैक्टर जो होते हैं वो इस कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट को अफेक्ट करते हैं. नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ एन इम्प्रेशन इन अ डेंटल पेशेंट इज हाउ? तो आप उसको फास्टली और स्नैप करते हो स्टेडीली. ठीक है, एकदम फास्ट और इजीली आप उसको स्नैप कर देते हो. यू स्नैप इट आउट. आप उसको हिलाते हिलाते नहीं, यू स्नैप इट आउट इन वन पुल. नेक्स्ट, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट इज एसोसिएटेड विद ऑल एक्सेप्ट व्हाट? क्लेफ्ट लिप और पैलेट जो होता है वो वैन डे वॉर्ड सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होता है, पॉप्लिटियम टेरिगियम सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होता है, पेरेरोमिन सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होता है, बट इट इज नॉट एसोसिएटेड विद गार्डनर सिंड्रोम. गार्डनर सिंड्रोम एक रेयर कंडीशन होती है दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मल्टीपल कोलोरेक्टल पॉलिप्स.
People with Gardner syndrome have high risk of developing colorectal cancer early in life, though there is cure, but उसका मैनेजमेंट और कैंसर का रिड्यूस करने का रिस्क बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है. नेक्स्ट, फॉर रिट्रैक्शन ऑफ मैक्सिलरी एंटीरियर बाय 1 मिलीमीटर अमाउंट ऑफ स्पेस रिक्वायर्ड इज हाउ मच. देखो, अगर आपको 1 मिलीमीटर से किसी एंटीरियर को पीछे लेके जाना है तो आपको 2 मिलीमीटर का मिनिमम स्पेस रिक्वायर्ड चाहिए रहता है. नेक्स्ट, सुप्रा जिंजाइवल कैलकुलस मेनली कंपोज ऑफ व्हाट. इट इज कंपोज ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट. कैल्शियम फॉस्फेट से सुप्रा जिंजाइवल कैलकुलस बना होता है, जिसमें 75.9% कैल्शियम फॉस्फेट इनऑर्गेनिक कंटेंट जो होता है वो प्रेजेंट होता है. Next, a 5-year-old comes to you with the following scan showing the juxtacondylar growth present around the right TMJ with the history of trauma. What should be the treatment to increase the ramal height in this patient? देखो, एक साइड पे आपका फ्यूज हो चुका है लगभग, ठीक है, ट्रॉमा के बाद फ्यूज हो चुका है और टूट चुका है एक साइड से कॉन्डाइल, ठीक है. नाउ यू विल गो फॉर कॉस्टोकॉन्ड्रल ग्राफ्टिंग इन दिस केस. दिस इज द राइट coronal CT scan showing the TMJ ankylosis and the patient is 5 years old and still growing. We should interpose the space with the graft and that has growth potential. Also, since the question asks we wish to increase the ramal height, there has to be interpositioning using a graft that has some length to do so. The only option to do here to do that in here is costochondral graft. ठीक है. Gap arthroplasty will further reduce the ramal height. टेम्पोरल फेशिया इज थिन फेशिया, तो वो दोनों हम यूज़ नहीं करेंगे ऑप्शंस. तो हमें क्या करना है कि हम फाइनली रैमल हाइट को इंक्रीज कराने के लिए कॉस्टोकॉन्ड्रल ग्राफ्टिंग करवाएंगे. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई दिस इज, जैसे कि ये एक दिखाई दे रही है, इट इज़ अ पीजो रिमर. ठीक है, इट्स अ पीजो इलेक्ट्रिक इंसर्ट. क्या बोलते हैं इसको? पीजो इलेक्ट्रिक इंसर्ट. नेक्स्ट, एचसीएल सिक्रीशन इज इंक्रीज बाय व्हाट. एचसीएल सिक्रीशन जो है वो हिस्टामाइन से इंक्रीज कर जाती है. HCl secretion, it is increased by histamine. Chloroquine and emaquidine produced increase in the acid output to peak at 1.35 plus minus 0.03 millimoles per 10 minutes. ठीक है, और हिस्टामाइन जो थी वो 107 से 100% तक एसिड सिक्रीशन को इंक्रीज कर रही थी when it was compared with the basal output rate. ठीक है. नेक्स्ट, ऑल आर द सुसाइडल इनहिबिटर्स एक्सेप्ट व्हाट. देखो, सुसाइडल इनहिबिटर्स मतलब कि ऐसी ड्रग्स जो कि सुसाइडली बाइंड कर जाती हैं किसी एंजाइम के साथ. ठीक है, इनमें से सुसाइडल इनहिबिटर्स हैं डाइसल्फिराम विच इनहिबिट्स द एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, एस्पिरिन विच इनहिबिट्स द साइक्लोऑक्सीजनेज, पेनिसिलिन विच इनहिबिट्स द डी ट्रांसपेप्टाइडेज. ठीक है, इनमें से साइक्लो जो सुसाइड इनहिबिटर नहीं है दैट इज साइनाइड इनहिबिटिंग साइटोक्रोम ऑक्सीडेज. साइनाइड जो है वो इरिवर्सिबली बाइंड कर जाता है. ठीक है, और इट इज अ सुसाइडल कॉजिंग. ठीक है, ये इनहिबिटर नहीं है, ये कॉज करवाने वाला है साइनाइड. Some of the clinical examples of suicidal inhibitors are disulfiram, which inhibits the acetaldehyde dehydrogenase enzyme, aspirin, which inhibits the cyclooxygenase 1 and 2 enzymes. Aspirin क्या करता है? cyclooxygenase 1 और 2 दोनों को inhibit करवाता है. Clavulanic acid, which inhibits the beta lactamases. Clavulanic acid covalently bonds to serine residues in the active site of beta lactamase, reconstructing the clavulanic acid molecule, creating a much more reactive species than that attacks other amino acid in the active site, permanently inactivating it. ठीक है, thus inactivating the enzyme beta lactamase. Penicillin, which inhibits the DD transpeptidase from building bacterial cell walls. Sulbactam क्या करता है? प्रोहिबिट करता है पेनिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स को ऑफ द बैक्टीरिया फ्रॉम मेटाबोलाइजिंग इनटू द पेनिसिलिन. ठीक है, तो ये सारे सुसाइडल इनहिबिटर्स हैं. नेक्स्ट, रिग्रेशन स्लोप एसेसेस व्हाट. रिग्रेशन स्लोप जो है वो असेस करती है, it allows us to investigate how much of the variation in the variable is possible. कितनी वेरिएशन वेरिएबल में पॉसिबल है वो रिग्रेशन स्लोप जो है वो असेस करती है. ठीक है, नेक्स्ट, हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन HMO सर्विस पेमेंट प्लान वाज एस्टेब्लिश्ड इन व्हाट ईयर. हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन HMO सर्विस पेमेंट प्लान ये 1973 में एस्टेब्लिश की गई थी. इट एक्ट्स एज अ लीगल एंटिटी विच प्रोवाइड्स प्रिस्क्राइब्ड रेंज ऑफ हेल्थ सर्विसेज टू ईच इंडिविजुअल हु हैज एनरोल्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन इन रिटर्न फॉर प्रीपेड फिक्स्ड एंड यूनिफॉर्म पेमेंट. मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप एक सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, उसके बदले में आपको सब्सक्रिप्शन में जो भी मेंशन किया गया वो चीज़ें दी जाती है. नेक्स्ट, व्हाई इज शैम्फर लाइन प्लेस्ड. शैम्फर लाइन इसलिए प्लेस की जाती है सो एज टू प्रोवाइड बल्क ऑफ अ रेस्टोरेशन. इट इज़ अ कंजर्वेटिव लाइन.
इट इज़ अ गुड फॉर गुड मार्जिनल अडेप्टेशन एंड इट प्रोवाइड्स गुड बल्क ऑफ रेस्टोरेशन, इसीलिए हम सैम्फर लाइन दिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी जॉगरन सिंड्रोम आर एसोसिएटेड विद विच ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, तो आंसर इज HLA-DRW52, ठीक है। इन एडिशन टू द सिक्का कॉम्प्लेक्स एंड द जॉगरन सिंड्रोम, दे बोथ हैव बीन फाउंड टू बी एसोसिएटेड विद अ स्पेशल HLA enzyme system, that is HLA-DR3 and HLA-B8, which are associated with primary form of disease, and HLA-DRW52 seen to be associated with both the forms of the Sjogren's syndrome. Next, Paul Bunel test is used for screening of what? Paul Bunel test, it is used for screening of infectious mononucleosis. Paul Bunel test फिर 50 साल पुराना टेस्ट है, अभी भी वो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस एप्स्टीन वार वायरस को डिटेक्ट करने के लिए अभी भी यूज़ किया जाता है वो। नेक्स्ट, प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन फॉलोइंग इज, देखो ये अपने पास क्रॉस बार दे रखा है, क्रॉस बार दे रखा है, तो इसमें हमें प्रिंसिपल क्या लगता है? क्रॉस बार में अपना वेज एंड एक्सल का प्रिंसिपल लगता है, सिंपल वेज, व्हील एंड एक्सल, ठीक है। वेज करेंगे और व्हील एंड एक्सल की तरह उसे घुमा देंगे और दांत बाहर आ जाएगा, ठीक है। विंटर क्रायल एलिवेटर, it is, as the name suggests, the elevator is a crossbar elevator with a triangular blade. This uses the application of this instruments are similar to Cryer elevator. It works on wheel and axle principle and on the wedge principle. Okay. Next, the duration of immobilization required for splinting of avulsed teeth is how much? 2 weeks होती है duration of immobilization. The type of trauma and duration of immobilization and the type of स्प्लिंट, इट डिपेंड्स, ओके। सब लग्जेशन में है तो 2 वीक का फ्लेक्सिबल स्प्लिंट देंगे, एक्सट्रूसिव लग्जेशन है तो 2 वीक्स का फ्लेक्सिबल स्प्लिंट देंगे, अवल्जन है तो 2 वीक्स का फ्लेक्सिबल स्प्लिंट देंगे, लेटरल लग्जेशन है तो 4 वीक्स का स्प्लिंट हो जाता है, लेटरल लग्जेशन में 4 वीक्स का स्प्लिंट हो जाता है, फ्लेक्सिबल स्प्लिंट देंगे यहाँ पे भी। फिर आता है फ्रैक्चर ऑफ द सेंट्रल थर्ड ऑफ द रूट, तो 4 वीक्स का रिजिड स्प्लिंट देंगे। जब भी रूट का फ्रैक्चर आ रहा है अपने पास तब हम रिजिड स्प्लिंट देते हैं, ठीक है। फ्रैक्चर ऑफ सर्वाइकल थर्ड ऑफ द रूट, 4 वीक का रिजिड स्प्लिंट। फ्रैक्चर ऑफ एल्वियोलर प्रोसेस ऑफ 4th मंथ, 4 मंथ के लिए रिजिड देंगे। अगर एल्वियोलर प्रोसेस फ्रैक्चर हुई है तो 4 मंथ के लिए रिजिड हम स्प्लिंटिंग करेंगे। नेक्स्ट, क्लिनिकल फाइंडिंग्स आर फ्रैक्चर इन्वॉल्विंग एनामल, डेंटिन एंड रूट। द पल्प मे और मे नॉट बी एक्सपोज्ड अकॉर्डिंग टू IADT गाइडलाइंस। व्हाट इज द चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट? तो आपको कोई भी ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं करनी है। ऑफन नॉट ट्रीटमेंट मे बी द appropriate option in the emergency situation, but only when there is a potential for rapid referral within several days to a child-oriented team. ठीक है। Next, following is a new glaucoma drug that works by opening uveoscleral pathway. uveoscleral pathway को ओपन करके एक ड्रग है जिसका नाम है VYZULTA, Vyzulta, ठीक है। The relatively new drug that is for glaucoma introduced in 2018, Vyzulta, that is lantoprostene bunod. Lantoprostene bunod is a prostaglandin analog that works by opening the uveoscleral pathway, but also has added ingredient of nitric oxide, which dilates the blood vessels to improve the blood flow to the optic nerve. ठीक है। Type of chromatography that is used in HbA1c is what? HbA1c के अंदर हम टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी जो यूज़ करते हैं दैट इज़ हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ओके। HPLC यूज़ किया जाता है, ठीक है। द मेथड इज रैपिड फॉर 20 मिनट्स, प्रिसाइज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है 5 to 10%, यूजेस स्मॉल अमाउंट्स ऑफ सैंपल दैट इज 3 microliter एंड कैन बी ऑटोमेटेड। नेक्स्ट, साइंटिस्ट टेक्स अ सैंपल फ्रॉम द बॉटम ऑफ द नियर बाय लेक. He divides the sample into 3 different test tubes. In the first test tube, he adds air pump. In the second test tube, he seals the cap and removes the oxygen. In the third test tube, he leaves it unsealed and undisturbed. Which tubes will not grow into obligate anaerobes? देखो, जिस सैंपल में आपने एयर पंप ऐड किया हुआ है वो उसमें ऑब्लिगेट एनारोब जो है वो ग्रो नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें आप एयर दे रहे हो कॉन्टिन्यूसली, एयर पंप है तो वहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया भी ग्रो कर सकते हैं. ओनली द ट्यूब वन विल बी सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन, मेकिंग इट नियरली इम्पॉसिबल फॉर एनारोबिक बैक्टीरिया टू सर्वाइव. Without the ability to process the byproducts of oxygen metabolism, the bacteria would die quickly due to exposure to oxygen-based toxins. Next, true regarding polysulfide is what? True, polysulfide का curing shrinkage high होता है, shrinkage continues even after setting, and loss of byproduct causes shrinkage in polysulfide. ठीक है, dimensional stability बहुत ज़्यादा कम होती है. ठीक है,
और श्रिंकेज बहुत ज़्यादा होती है, दैट 0.45% जो है वो श्रिंकेज रहती है इसमें. It continues even after setting. It is the highest permanent deformation, that is 3 to 5% among all the elastomers. Elastic recovery improves with time, so pouring of the model should be delayed by half an hour. ठीक है. Further delay is avoided to minimize curing shrinkage. Loss of byproduct, that is water, also causes shrinkage in this product. Next, concentration of pyruvic acid and lactic acid in the blood is increased due to deficiency of what? देखो, पायरुविक एसिड और लैक्टिक एसिड की कंसंट्रेशन ब्लड में इंक्रीज करती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ थियामिन. ठीक है, थियामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है. नेक्स्ट, सेबर्ट क्लास 4 फॉर रेजिडुअल रिज ऑफ पेशेंट इज व्हाट? सेबर्ट क्लास 4 का मतलब है नॉर्मल रिजेस प्रेजेंट है. सेबर्ट ने ग्रुप किया था रेजिडुअल रिजेस को इनटू 3 कैटेगरीज, 3 कैटेगरीज के ऊपर उसने ग्रुप किया था ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द बोन. ठीक है, कैटेगरी 1 और क्लास 1 क्या था? It is the ridge with loss of facial-lingual width. With normal epicoronal height, it constitutes of about 32.4% of edentulous ridges. Class 2 जो था, it is the ridge with loss of ridge height with normal ridge width. Ridge की width ठीक है, normal है, but ridge की height चली गई है, तो वो class 2 होता है. ठीक है, facial-lingually अगर हमारा width का loss हो रहा है, ठीक है, विद नॉर्मल अपाइकोकोरोनल हाइट, तो उसको क्लास 1 बोलते हैं. क्लास 3 में क्या रहता है कि इट इज द रिज विद लॉस ऑफ बोथ हाइट एंड विड्थ, मतलब रिज की दोनों हाइट और विड्थ दोनों लॉस हो गई है. क्लास 4 में क्या रहता है कि इट इंडिकेट्स नॉर्मल रिजेस. दिस क्लास डज नॉट बिलोंग टू द ओरिजिनल क्लासिफिकेशन एंड इट वॉज एडेड लेटर ऑन. नेक्स्ट, अ सिंगल edentulous area which does not cross the midline of the arch with teeth present on both the sides, anterior and posterior, is known as what? It is known as class 3 Kennedys. ठीक है. Next, the mean denture bearing area in a edentulous mandible is how much? Mean denture bearing area जो होता है that is 12.25 centimeter square. Researchers have computed that the mean denture bearing area is 22.96 centimeter square in edentulous maxilla and approximately 12.25 centimeter square in the edentulous mandible. Next, what is the complication of costochondral graft? Costochondral graft में there could be graft fracture, there could be overgrowth of the graft, and there could be ankylosis in the costochondral graft. ठीक है. Next, the danger zone in endodontics is what? Danger zone is the distal aspect of the mesial root of the mandibular molars. Distal aspect of the mesial root of the mandibular molars. It's the danger zone. Palatal side of the buccal root of maxillary first premolar and palatal side of the buccal root of maxillary bifurcated premolars. ये सभी जो होती हैं वो हमारी danger zone होती हैं in the endodontics. Concavities on the distal aspect of the mesial root of the mandibular first molar may establish a danger zone in which if there is excessive instrumentation combined with straightening of the canal, it may result in thinning of the dentinal wall that may strain or produce a highly strained concentration at the point, जिससे कि वहाँ से वो ब्रेकेज हो सकती है. Concavities in the buccal or the palatal side of the buccal root of the maxillary first premolars, these depressions may also represent a potential danger zone. The anatomic groove is often found on the palatal side of the buccal root of maxillary bifurcated premolars, and it is another example of such hidden danger zone. Next, identify the type of fracture. फ्रैक्चर आपको ऐसा सा दे रखा है, ठीक है, आगे मैंडिबल से यहाँ से फ्रैक्चर हो रखा है आगे से, ठीक है. तो इट इज़ द टाइप ऑफ फ्रैक्चर दैट इज कंपाउंड फ्रैक्चर. हमारा थ्रू एंड थ्रू फ्रैक्चर है, इट इज़ अ कंपाउंड फ्रैक्चर. सिंपल फ्रैक्चर वो होता है कि लीनियर फ्रैक्चर होगा विच डज नॉट हैव कम्युनिकेशन विद द एक्सटीरियर. कंपाउंड या ओपन फ्रैक्चर ये होता है कि इसका एक्सटीरियर एनवायरनमेंट से या फिर कोई ना कोई मेम्ब्रेन या पेरिडोंटल मेम्ब्रेन या म्यूकोजा जो है वो टीयर हो चुकी है, दैट इज नोन एज कंपाउंड फ्रैक्चर. ठीक है. नेक्स्ट, फॉल्स रिगार्डिंग ROC कर्व इज व्हाट. देखो, ट्रू स्टेटमेंट्स के बारे में बात करेंगे. ROC कर्व क्या होता है हमारे पास? दैट इज receiver operating curve. It is a graphical representation of the relationship between sensitivity and specificity for a diagnostic test. It provides a simple tool for applying the predictive value method to the choice of positivity criterion. Drawing the curve, हम ROC curve को construct करते हैं by plotting the true positive rate, that is sensitivity, against the false positive rate, that is I specificity, for several choices of positivity criterion. Using the curve to locate the positive criterion, the upper left corner represents the perfect diagnostic test. At this point, both sensitivity and the specificity are 100%. That is all
All diseased individuals are identified, all healthy individuals are labeled disease free, and no disease free individuals are labeled as diseased. ये सारा हमारा ROC कर्व के अंदर आता है, ठीक है. नेक्स्ट, द यूज ऑफ रिसर्च डिजाइन इन्वॉल्विंग डाइवर्स डेटा सोर्सेस टू एक्सप्लोर द सेम फिनोमेना इज कॉल्ड एज व्हाट. देखो, हम रिसर्च डिजाइन में डाइवर्स डेटा सोर्सेस को यूज कर रहे हैं जिससे कि हम फाइनली एक ही फिनोमेना को स्टडी कर रहे हैं. दिस इज नोन एज डेटा ट्रायंगुलेशन. Theoretical triangulation alludes to approaching the research with diverse perspectives and hypotheses in mind. Investigative triangulation is where different researchers, interviewers, or observers with the shared interest and focus of study are employed. ठीक है. Methodological triangulation में क्या होता है? It refers to the use of a research design, drawing a variety of methods to collect and interpret that data. ठीक है. Next, chloroma is a cancer of what? Chloroma is a cancer of immature granulocytes. Granulocytic sarcoma, also known as chloroma, myeloid sarcoma, or extramedullary myeloblastoma, is a rare tumoral accumulation of immature granulocytes, including myeloblast, promyelocytes, and myelocytes that can affect almost any tissue in children or older patients with leukemia or other myeloproliferative disorders such as hypereosinophilic syndrome or polycythemic vera. Next, CPP or ACP. It is what? It is the enamel dentin remineralizing agent. ठीक है. CPP forms nanoclusters with ACP and they provide a pool of phosphate and calcium to maintain supersaturation in saliva. Phosphate और calcium की supersaturation बना के रखता है in saliva. Due to the fact that CPP and ACP, it stabilizes these levels of minerals in the solution. They aid in buffering of the pH of the plaque and they help in remineralization of the enamel and dentin. Some experiments have also suggested anti-caries properties of CPP/ACP. Next, in a set of data below, find the value of third quartile. आपको क्वारटाइल पूछा है, 9 से डेटा है और इसकी पूरी रेंज चल रही है. ठीक है, 9 से डेटा चल रहा है, पूरी रेंज है इसकी. इसमें थर्ड क्वारटाइल पूछा हुआ है, इट इज़ 33. ठीक है, क्वारटाइल निकालते कैसे? सबसे पहले हम एक पूरी रेंज में इसको रखेंगे, फिर उस रेंज को हम सिलेक्ट करेंगे कि कितने इंटरवल के बाद, 3 इंटरवल के बाद एक रेंज आ रही है, 3 इंटरवल के बाद एक रेंज आ रही है. तो पहली रेंज हमारी खत्म हो रही है 9 पे, दूसरी 16 पे, तीसरी 33 पे. ठीक है, सो दैट्स हाउ यू कैलकुलेट द क्वारटाइल. नेक्स्ट, आपको एक लग्जेशन की इमेज दे रखी है. ठीक है, इसमें दांत जो है वो लग्जेट कर चुका है सारा. ठीक है, तो इसमें दोनों के एपेक्स ओपन पड़े हुए हैं. सो इट इज सेइंग व्हाट इज इट, मतलब इसको आइडेंटिफाई करने के लिए बात कर रहा है. इट इज लेटर लग्जेशन, दैट इज टूथ इज रिप्लेस इन एनी पोजिशन रादर देन एक्सिलरी. एक्सिलरी पोजिशन के सिवाय किसी भी पोजीशन में अगर दांत डिस्प्लेस हो जाता है देन इट इज नोन एज लेटर लग्जेशन. डायग्नोसिस इज टूथ अपीयर्स डिस्प्लेस्ड, non-mobile, non-tender, and X-ray will show increased PDL space and displaced tooth apex. Tooth का apex जो है वो displace हो चुका होता है. ठीक है. Next, what is the instrument demonstrated below as labeled as? तो ये अपने पास Nabors probe की एक इमेज दे रखी है. ठीक है. So the instrument labeled below is a Furcation probe or the Nabors probe. Next, which of the following is true regarding Acti-Site local drug delivery system? एक्टिसाइट के अंदर क्या चीज़ होती है? इसमें टेट्रासाइक्लिन होती है और फाइबर बेस्ड सिस्टम प्रेजेंट होता है. एक्टिसाइट कंटेन्स टेट्रासाइक्लिन एंड फाइबर बेस्ड सिस्टम्स. नेक्स्ट, NNT और नंबर नीडेड टू ट्रीट डिपेंड्स अपॉन व्हाट? इट डिपेंड्स अपॉन एट्रीब्यूटेबल रिस्क रेशियो. NNT का मतलब होता है I डिवाइडेड बाय ARR, दैट इज I डिवाइडेड बाय एट्रीब्यूटेबल रिस्क रेशियो. NNT can be used to help us assess or choose between 2 different treatment options. For example, NNT for a drug A is lower than that of the drug B. It suggests that drug A may be more effective and all other things being common or equal, तो उस conditions में हमें drug A को choose करना चाहिए rather than drug B. ठीक है. Next, oral lichen planus OLP and oral lichenoid reaction OLR are clinically, histologically and pathologically similar diseases. Mark the statements that could help us differentiate the conditions. Oral lichen planus जो होता है वो bilaterally occur करता है,
बल्कि लाइकेनॉइड रिएक्शन जो है वो यूनिलेटरली आकर करता है, ठीक है। ओरल लाइकेनॉइड रिएक्शन इज विद डीप टिश्यू इन्फिल्ट्रेशन इनटू द कनेक्टिव टिश्यू एंड हाइपरकेराटोसिस, ठीक है। ये ज़्यादा होती है, डीप टिश्यू इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा, हाइपरकेराटोसिस ज़्यादा होगा इन ओरल लाइकेनॉइड रिएक्शन एज कम्पेयर टू ओरल लाइकेन प्लानस, ठीक है। Oral lichen planus and oral lichenoid reactions are clinically histopathologically similar diseases, whereas oral lichen planus, it is a consequence of T cell mediated autoinflammatory process to a still unknown antigen. Oral lichenoid reaction जो होता है वो ज़्यादातर ड्रग्स कॉज करते हैं, डेंटल रेस्टोरेटिव मटेरियल्स कॉज करते हैं, डेंटल प्लाक कॉज करता है. Patients with oral lichenoid reactions who have amalgam fillings near lesions should have been replaced. That is, when possible, they should go for a patch test, as well as when drug-induced oral lichenoid reactions are suspected, they should go for a patch test. ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंस आ जाता है. नेक्स्ट, डबल ब्लेब साइन इज ड्यू टू व्हाट? डबल ब्लेब साइन, इट इज ड्यू टू एमनियन एंड यॉक सैक. ठीक है, डबल ब्लेब साइन ड्यू टू एमनियन and yolk sac. Next, a 22-year-old patient visits the clinic with a history of fall. Clinical examination reveals the left central incisor sensitive to percussion. Radiographic findings are as shown below. What will be your management? देखो, रेडियोग्राफिक में आपके पास अपाइकल थर्ड तो नहीं गया है, मिडिल थर्ड भी नहीं गया है, मिडिल थर्ड से भी ऊपर से ये गया हुआ है. ठीक है, तो इसमें हमारा प्रोग्नोसिस विल बी लोअर. ठीक है, सर्वाइकल थर्ड ऑफ द रूट फ्रैक्चर हमारा हुआ है, तो वी विल गो फॉर स्प्लिंटिंग. स्प्लिंटिंग भी हम 4 हफ्तों के लिए छोड़ देंगे. हीलिंग विद कैल्शिफाइड टिश्यू. दिस टाइप ऑफ हीलिंग इज डिपेंडेंट अपॉन इंटैक्ट पल्प एंड इज सीन इन प्राइमरली द केसेस ऑफ लिटिल और नो डिसलोकेशन, दैट इज कंकशन और सबलक्सेशन ऑफ द कोरोनल फ्रेगमेंट, मोस्ट ऑफन इन द टीथ विद इमेच्योर रूट फॉर्मेशन. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप्स इन अ हेल्थ प्रोग्राम प्लानिंग आर व्हाट? हेल्थ प्रोग्राम अगर आप प्लान कर रहे हो तो उसके लिए 8 स्टेप होते हैं. 8 स्टेप्स वी हैव. फर्स्ट इज असेसमेंट ऑफ नीड्स. सबसे पहले आपको नीड्स पता होनी चाहिए. देन डिटर्मिनिंग द प्रायोरिटीज. उन नीड्स में भी आपको प्रायोरिटाइज करना है कि कौन सी नीड हमें पहले फुलफिल करनी चाहिए. फिर उसके बाद यू विल डेवलप द गोल्स. आप अपनी जो आपका प्लान है, हेल्थ प्रोग्राम है, उसका गोल डेवलप करोगे, उसके ऑब्जेक्टिव डेवलप करोगे, उसकी एक्टिविटीज़ डेवलप करोगे कि क्या क्या हम करेंगे ताकि हम इन प्रायोरिटीज़ को, इन नीड्स में से प्रायोरिटीज़ को पूरा कर सकें. आइडेंटिफाई द सोर्स एंड कंस्ट्रेंट्स. कहाँ सोर्स है हमारा, कहाँ से हम सामान उठा सकते हैं, क्या कंस्ट्रेंट है हमारा, क्या इकोनॉमिकल कंस्ट्रेंट है हमारा, क्या हमारे व्हीकल का कंस्ट्रेंट है, क्या हमारे जाने का कंस्ट्रेंट है, वो आइडेंटिफाई करना 4th स्टेप होता है. फर्स्ट इज नीड असेसमेंट, सेकेंड इज प्रायोरिटीज असेसमेंट, नीड में से भी प्रायोरिटी उठा ली. थर्ड इज डेवलपमेंट ऑफ गोल्स. फोर्थ इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्स. फिफ्थ इज ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज. अगर ये नहीं हुआ तो ये करेंगे, ये नहीं हुआ तो वही करेंगे, दैट इज फिफ्थ. ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी पिक करना फिफ्थ रहता है. फिर इम्प्लीमेंटेशन, यू विल इम्प्लीमेंट ऑल ऑफ देम. ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी, मेन प्लान, सब कुछ इम्प्लीमेंट करोगे, दैट इज द 6th स्टेप. उसके बाद यू विल सुपरवाइज इट कि आपका सारा काम ढंग से हो रहा है, नहीं हो रहा है, कि आपका जो रिपोर्ट है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो फुलफिल हो रहा है, नहीं हो रहा है. लास्ट में यू विल इवेल्युएट द होल डेटा, होल प्रोसेस, होल प्लान, एंड यू विल रिवाइज इट कि आप क्या प्रॉपर कर सकते थे, क्या अच्छे से हो सकता था, और किस तरीके से हमारा प्रोग्राम और बेटर हो सकता है. नेक्स्ट, मटेरियल यूज टू मेक माउथ गार्ड इज व्हाट? देखो, विनाइल शीट्स मिलती हैं हमें. माउथ गार्ड जो बनाते हैं, दैट वी मेक फ्रॉम विनाइल शीट्स, दैट इज इथाइलिन विनाइल एसीटेट शीट्स. ठीक है, डिफरेंट टाइप के होते हैं. कस्टम वेड हो सकता है, लेटेक्स रबर इसमें यूज हो सकता है, माउथ फॉर्म्ड हो सकते हैं, दैट इज पीवीसी और पीवीए, सीपीई. ठीक है, या फिर पीवीसी हो सकता है, दैट इज सॉफ्टन विद वार्म वाटर. ठीक है, ये सारे होते हैं, लेकिन वी कॉमनली यूज इथाइलिन विनाइल एसीटेट शीट्स. नेक्स्ट वी हैव 2 स्टेटमेंट्स. फर्स्ट स्टेटमेंट 1, इन द यूएस डेंटिस्ट्री इज सेपरेटेड फ्रॉम मेडिसिन सिंस 1860. ये गलत स्टेटमेंट है. ठीक है, इट इज नॉट सेपरेटेड फ्रॉम मेडिसिन since 1860. Next, majority of the people opt for treatment from private clinics in US. तो ये true statement है. ठीक है, because dentistry is not recognized during the establishment of US medical schools, the Baltimore College of Dental Surgery, now known as University of Maryland School of Dentistry, it was founded as an independent institution in 1840. Okay, next,
pH at which sublayer of enamel dissolves but enamel layer remains intact. देखो pH of 5.5 ये enamel की लेयर को डिसॉल्व कर देता है मगर enamel की लेयर स्मूथन आउट होके वहीं पे रहती है, ठीक है, it remains intact. A drop in local pH below 5.5 can cause demineralization of the tooth surfaces. At critical pH of 5.5, the tooth materials act as buffer and they lose calcium and phosphate ions into the plaque. This type of buffering activity initially would help in maintaining the local pH of about 5.5. However, when the local pH ये 5 से नीचे गिर जाएगी तो demineralization will be inevitable. This results in formation of incipient caries where the surface is intact but the demineralization starts below the surface. That is known as subsurface demineralization. When the pH is lowered further, it leads to the surface demineralization of the enamel. Next, fluoride in 1 liter of water for children कितना होना चाहिए? तो उसमें आंसर है हमारा 0.3 मिलीग्राम्स, ठीक है. 1 लीटर ऑफ वाटर फॉर चिल्ड्रन, उसमें 0.3 मिलीग्राम फ्लोराइड होना चाहिए बच्चों के लिए, ठीक है, फॉर चिल्ड्रन. नेक्स्ट, परफोरेशन चांसेस इन विच एरिया ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ डिस्टल रूट ऑफ मैंडिबुलर मोलर इज मोस्ट हाईली. डिस्टल रूट ऑफ मैंडिबुलर मोलर प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये बीच का जो फर्केशन वाला हिस्सा है दैट इज द मीजियल साइड ऑफ द डिस्टल रूट ऑफ मैंडिबुलर मोलर, उसमें परफोरेशन का चांस सबसे ज्यादा रहता है, ठीक है. नेक्स्ट, जीन एसोसिएटेड विद क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट इज व्हाट जीन? इट इज TBX22, ठीक है. कौन सी जीन एसोसिएटेड होती है? TBX22, दैट इज T बॉक्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 22. पोलियोवायरस रिसेप्टर लाइक 1 दैट इज PVRL1 भी एसोसिएटेड होती है और IRF6 दैट इज इंटरफेरॉन रेगुलेटरी फैक्टर 6 भी रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर एक्स लिंक्ड क्लेफ्ट पैलेट. नेक्स्ट, वाइल डूइंग टीथ अरेंजमेंट फॉर कैनेडी क्लास 4 जॉ रिलेशन, आपको कैसे दांतों को एडजस्ट करना है? कैनेडी क्लास 4 में कर रहे हो आप तो एंटीरियर से आप शुरू करेंगे. एंटीरियर टीथ शुड बी इन कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग मैक्सिमम इंटरकस्पेशन, ठीक है. इन कैनेडी क्लास 4 RPD configuration, contact of the opposing anterior teeth in the planned intercuspal position is desired to prevent continuous eruption of the opposing natural incisors unless they are otherwise prevented from extrusion by the means of lingual plate or auxiliary bar or by splinting. Next, while planning for teeth setting, what is the proportion of interdental spacing among central incisor, lateral incisor and canine? इंटरडेंटल स्पेसिंग जो हम रखते हैं दैट इज 50 40 30, ठीक है. 50 हमारा जाता है सेंट्रल इंसाइजर के लिए, 40% हमारा जाता है लेटरल इंसाइजर के लिए और 30% फ्रॉम द गम लाइन टू द टिप ऑफ द टीथ तो हमारा जाता है फॉर कैनाइन, ठीक है. नेक्स्ट, लिपिड ए इज एसोसिएटेड विद व्हाट? लिपिड ए इज एसोसिएटेड विद द टॉक्सिसिटी ऑफ एंडोटॉक्सिन, ठीक है. ये हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल दे रखी है, उसका सिर्फ फोटो दे रखा है. लिपोपॉलीसैकेराइड दैट इज ए, लिपिड ए टू विच is attached the lipopolysaccharide. LPS constitutes TH of gram-negative bacteria. The lipopolysaccharide determines the major surface antigen, ठीक है, the O antigen. The toxicity, that is pyrogenicity, lethal effect, tissue necrosis of bacteria is associated with the lipid A. Next, swing lock denture is not indicated in what? Not indicated in patients who exhibit poor oral hygiene, ठीक है. It is indicated in missing tooth or weakened key abutment teeth such as bilateral distal extension. Tooth mobility in patients who have undergone for periodontal therapy or who have suffered major bone loss and require some type of stabilization, वहाँ पे हम swing lock suture देते हैं. It is also indicated in those patients who have undergone ablation surgery for the therapy of oncology and have few remaining teeth. For example, patients who have hemimaxillectomy or mandibular resection. It is economical and it provides inadequate retention. It is contraindicated when a patient exhibits poor oral hygiene, when a patient's manual dexterity is so poor that he or she could not open or close the glass portion of the swing lock,
When a patient presents with a shallow vestibule or a high frenal attachment, or when interocclusal or inter-arch space would prevent the successful accommodation of prosthesis, तब swing lock denture जो है वो दिया जाता है. Okay. Next, in managing the post-endodontic pain, which of the following is the most effective agent? तो acetaminophen plus ibuprofen इन चारों में से सबसे ज़्यादा effective होता है. Endodontic treatment with low prevalence of post-operative pain is usually the treatment of choice. There have been no controlled dental studies evaluating the additive effects of combining a non-steroidal anti-inflammatory drug with paracetamol. ठीक है, लेकिन बेवर्क और मेहनीर ने इसको देखा था कि combination of acetaminophen plus ibuprofen was more effective than ibuprofen alone in managing the post-operative pain. The combination of aceclofenac or acetaminophen plus ibuprofen is superior to acetaminophen और acetaminophen प्लस CO कोडीन. ठीक है, कोडीन वगैरह से ज़्यादा सुपीरियर था in controlling the post-operative pain. Of clinical importance, the superior or prolonged analgesia and the fewer side effects after enteric-coated diclofenac tablets plus acetaminophen compared with acetaminophen plus codeine. ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स को हमें ध्यान में रखते हुए, प्लस इनके यूजेस को ध्यान में रखते हुए, प्लस इनके फ़ायदे को ध्यान में रखते हुए लास्ट में आंसर ये निकलता है कि acetaminophen plus ibuprofen it is best for maintaining or dealing with the patient of the post-operative pain. नेक्स्ट ये अप्लायंस दिखाई दे रहा होगा. ठीक है, इसमें बीच में यहाँ पे हमारे पास एक एक्सपैंडिंग वाली एक वायर लगी हुई है. नाइटा एक्सपैंडर है बेसिकली. सो इट इज़ अ नाइटा एक्सपैंडर, नाइटा पैलेटल एक्सपैंडर. It is a slow palatal expander, while all other the examples of rapid maxillary expansion. Hyrax rapid maxillary expansion के लिए यूज़ होता है. Haas appliance HASS it is for rapid maxillary expansion. Isacons RME Isacon rapid maxillary expansion वो भी rapid maxillary expansion के लिए यूज़ होता है. But 8 Nitai NPE1 expander जो है वो अभी वाला है जो हमने अभी दिखाया. It is a tandem loop nickel titanium temperature activated palatal expander that produces light continuous pressure in the mid palatal suture while simultaneously uprighting, rotating and distalizing the first molars. ठीक है. Next, a wrestler while fighting ended up getting dental trauma, injuring several of his teeth and now has developed the pathological fear of motion. क्या किस तरह का ये fear हुआ? It is kinesophobia. ठीक है, kinesophobia is defined as an excessive irritational and debilitating fear of physical movement and activity resulting from feeling of vulnerability due to painful injury or re-injury के chances. ठीक है, kinesophobia or excessive fear of movement occurs when people feel vulnerable to injuring themselves during the movement because of the previous injury. Kinesophobia also contributes to pain becoming a chronic condition. Individual believes that his physical activity will result in pain. तो वो mentally ही pain के लिए तैयार हो जाता है पहले से. ठीक है, leading to avoidance, physical disactivity, disuse and depression in such patients. Next, Ministry of Health and Welfare has launched which of the following program under National Oral Health Program? उन्होंने लॉन्च किया है ई दंत सेवा. द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर दैट इज डॉक्टर हर्षवर्धन he launched a website and mobile application called as e-Dant Seva. That's the first digital platform for oral health in New Delhi in October 2019. Histological appearance दे रखी है, RS cell दिखा रखे हैं यहाँ पे, आउल सेल दिख रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, so it is associated with what? It is a characteristic appearance of what? It is a characteristic appearance of Hodgkin's lymphoma. क्या होता है? Hodgkin's lymphoma आता है. देखो, owl eye appearance, it's a pattern of medical radiology and histopathology, and it is appearance of inclusion bodies which is highly specific for cytomegalovirus infection. Owl eye appearance of entire nucleus is a finding that is Reed-Sternberg cells. It is seen in individuals with Hodgkin lymphoma. अगर यहाँ पे inclusion bodies होती तो it will be having cytomegalovirus infection. लेकिन हमें यहाँ पे Reed-Sternberg cells मिले हैं in the individual with the Hodgkin lymphoma. Owl eye appearance of the lentiform nucleus of the basal ganglia on the head CT scan images in individuals of cerebral
हाइपॉक्सिया, ठीक है, वहाँ पे भी ये चीज़ देखी जाती है, ठीक है। दीज आर सिमेट्रिक मिरर इमेज बाइलोब न्यूक्लियस आउल आई अपीयरेंस ऑफ RS सेल इन हॉजकिन लिम्फोमा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ल्यूकोप्लेकिया हैज हाईएस्ट रिस्क ऑफ मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन? तो स्पेकल्ड फॉर्म ऑफ ल्यूकोप्लेकिया उसका हाईएस्ट रिस्क ऑफ मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन रहता है। क्लिनिकली ल्यूकोप्लेकिया 4 तरह में क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। अर्ली होमोजीनियस होता है, अर्ली थिन होता है, उसके बाद होमोजीनियस होता है, फिर वेरुसिफॉर्म होता है, फिर स्पेकल्ड आता है। थिन जो होगा वो बहुत कम होता है, होमोजीनियस उससे ज़्यादा होता है सेकंड नंबर पे, फिर वेरुसिफॉर्म आता है जो कि थर्ड नंबर पे पोटेंट आ जाता है। स्पेकल्ड फॉर्म सबसे ज़्यादा पोटेंट होती है। इट इज़ द हाईएस्ट रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी, स्पेकल्ड फॉर्म, ओके। नेक्स्ट, द कलर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर इज व्हाट? उसमें ब्लू बॉडी रहती है। ऑक्सीजन में वाइट कलर का शोल्डर होता है और ब्लैक कलर की बॉडी होती है। ऑक्सीजन वाइट कलर का शोल्डर होगा, ब्लैक कलर की बॉडी होगी। नाइट्रस ऑक्साइड में ब्लू कलर की शोल्डर होता है, ब्लू कलर की बॉडी होती है। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन में अपने पास प्रोपेन बर्ने इनफ्लामेबल, तो ये ऑरेंज कलर का इसका शोल्डर होता है और ऑरेंज कलर की ही इसकी बॉडी होती है प्रोपेन की। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रे, ठीक है, ग्रे कलर की बॉडी, ग्रे कलर की उसकी शोल्डर। एयर, एयर में अपना वाइट कलर का शोल्डर होता है और ग्रे कलर की बॉडी होती है। शोल्डर इज वाइट कलर्ड, ग्रे कलर की बॉडी होगी। वाइट ब्लैक होगा तो वो ऑक्सीजन जाएगी, वाइट ग्रे होगा तो अपना एयर आएगी, नॉर्मल एयर। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फुल ब्लैक होती है, पिच ब्लैक नाइट्रोजन, ठीक है। ब्लैक शोल्डर, ब्लैक बॉडी। फिर आता है लास्ट में एंटोनॉक्स। एंटोनॉक्स में वाइट कलर का शोल्डर होता है, ब्लू कलर की बॉडी होती है, ठीक है। वाइट कलर का शोल्डर, ब्लू कलर की बॉडी। नेक्स्ट, द मैक्सिमम ऑक्सीजन वॉल्यूम दैट कैन बी डिलीवर्ड थ्रू ऑक्सीजन सिलेंडर इज हाउ मच? तो आप 5 लीटर ऑक्सीजन पर मिनट सप्लाई कर सकते हो थ्रू ऑक्सीजन सिलेंडर, ओके। स्टैंडर्ड ऑक्सीजन सिलेंडर्स कैन डिलीवर फ्रॉम हाफ अ लीटर पर मिनट ऑफ ऑक्सीजन टू 5 लीटर्स पर मिनट ऑफ ऑक्सीजन। एवरी लीटर पर मिनट of the oxygen increases the percentage of oxygen in the patient's breath by 3 to 4%. इतना होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, फ्लोरीन इज अ ट्रेस एलिमेंट। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ फ्लोरीन इन द ह्यूमन बॉडी? फ्लोरीन ट्रेस एलिमेंट है और इसका मेन फंक्शन ह्यूमन बॉडी के अंदर हेल्दी बोन्स एंड हेल्दी टीथ होता है, ठीक है। हेल्दी बोन एंड हेल्दी टीथ is one of the only main function of fluorine in the human body. Next, ambroxol belong to which class of drug? Ambroxol, it belongs to mucolytic agents. Ambroxol belong करता है to mucolytic agents. Ambroxol, it is used for treatment of wet cough. ठीक है, wet cough की treatment के लिए यूज किया जाता है. Next, what concentration of sodium fluoride mouth rinse for weekly use is to be prescribed in a normal basis? आप 0.2% सोडियम फ्लोराइड माउथ रिंस वीकली यूज पेशेंट के एट होम यूज के लिए प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, 0.2%. नेक्स्ट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम आर व्हाट? ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, उसमें इम्प्रूवमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ ओरल एंड reduce disparity in the oral health, accessibility in rural and urban population है पहला चीज. It reduces the morbidity from oral diseases by strengthening the oral health services at sub-district and district hospitals. Integrate oral health promotion and preventive services with general health care system. Promotion of public-private partnership (PPP) for achieving public health goals. ये भी इसके अंदर हमारे पास नेशनल ओरल हेल्थ केयर प्रोग्राम के अंदर आता है. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू इकदास क्लासिफिकेशन इसको कौन सा स्कोर दिया जाएगा? देखो, इसमें आपकी ऊपर की इनेमल जो है वो हल्का हल्का सा जा चुका है और अंदर की जो डेंटिन है वो इन्फेक्टेड दिखाई दे रही है एज अ डिस्कलर डेंटिन. तो आपको इसको इकदास क्लासिफिकेशन में इकदास क्लास दोगे 4, ठीक है. 1 में कोई विजुअल शाइन नहीं आता या फिर थोड़े बहुत पिट दिखने शुरू हो जाते हैं. 0 में अपने पास 0 विजुअल साइन होते हैं, ठीक है. और 2 में अपने पास विजिबल चेंजेस इन इनेमल हो जाते हैं जब उसको ड्राई किया जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है. स्कोर 3 में क्या होता है कि लोकलाइज डिस्ट्रक्शन ऑफ इनेमल होती है विदाउट विजिबल डेंटिन. 4 में क्या होता है कि अपनी डेंटिन भी ज़्यादा से ज़्यादा खराब होने लग पड़ती है, डेंटिन की डिस्कलराइजेशन देखने को मिलती है. 5 में हमारे पास कैविटी
इनामल और डेंटिन को इन्वॉल्व हुई दिखाई देती है। 6 में एक्सटेंसिव कैविटी होती है। ठीक है, एक 10 क्लासिफिकेशन होगी। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंडिकेशंस ऑफ पोर्सिलेन लैमिनेट वेनियर्स एक्सेप्ट व्हाट। कहाँ नहीं करेंगे, पहले उसके बारे में बात करते हैं। टीथ विद एक्सटेंसिव रेस्टोरेशन, जहाँ पे एक्सटेंसिव रेस्टोरेशन हो चुकी है वहाँ पे अगर आप लैमिनेट विनियर दोगे तो पूरा का पूरा क्राउन ही हाथ में आ जाएगा, टूट जाएगा। मिड लाइन डायस्टेमा में आप कर सकते हैं। एस्थेटिकली कॉम्प्रोमाइज टूथ है, दिखने में उसकी शेप वैसी नहीं है जैसी हमें चाहिए, जैसा पेशेंट डिजायर करता है, वहाँ कर सकते हैं। टूथ वियर हो रहा है, वहाँ कर सकते हैं। ओके, indications are aesthetically compromised anterior teeth, poorly shaped or crooked teeth, stained with intrinsic or extrinsic staining, closure of diastemas, enamel hypoplasia, fractured teeth, anatomically malformed teeth and tooth wear. ठीक है, कहाँ नहीं करना है, contraindicated कहाँ है? Crowded or malign teeth, teeth with inadequate enamel present. ठीक है. Next, patient with habitual clenching and grinding habits, non-ideal occlusion, periodontal disease है पेशेंट को, teeth widened by existing large restoration. ठीक है, अगर existing large restoration है तो वहाँ पे भी नहीं करना हमें पोर्सलेन वेनियर। नेक्स्ट, निकोल्स्की साइन इज नॉट सीन इन व्हाट। निकोल्स्की साइन पहले प्रेजेंट होता कहाँ है? बुल्लस पेम्फिगॉइड में प्रेजेंट होता है, स्केल्ड सिंस सिंड्रोम में प्रेजेंट होता है, सी स्केल्ड स्किन सिंड्रोम में प्रेजेंट होता है, डीटॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलिसिस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और बट इट इज़ नॉट सीन इन म्यूकस मेम्ब्रेन पेम्फिगॉइड। म्यूकस मेम्ब्रेन पेम्फिगॉइड के अंदर निकोल्स्की साइन वुड बी नेगेटिव। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ मॉन्सन सॉल्यूशन। MONSEL सॉल्यूशन का मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है? दैट इज यूज्ड टू स्टॉप ब्लीडिंग इन सर्टेन मेडिकल प्रोसीजर्स। उसमें 20% फेरिक सल्फेट डाला जाता है। Monson solution was first synthesized by Leon Monsell. He was a French pharmacist using ferrous sulfate, ferrous subsulfate, sulfuric acid and nitric acid. It is believed that hemostasis and styptic properties are there due to the oxidizing capacity and low pH of this agent, which causes protein denaturation. Ferric subsulfate जो है वो एक टाइप का स्टिप्टिक या फिर हीमोस्टैटिक एजेंट होता है, दैट इज यूज्ड इन सुपरफिशियल स्किन बायोप्सीज। फेरिक सबसल्फेट सॉल्यूशन इज आल्सो नोन एज अ बेसिक फेरेट सल्फेट सॉल्यूशन और अ मॉन्सेल सॉल्यूशन। फेरिक सबसल्फेट सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम फेरस सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ठीक है, इट कंटेन्स पर 100 ml बेसिक फेरिक सल्फेट इक्विवेलेंट to not less than 20 gram and not more than 22 gram. 20 ग्राम से कम नहीं और 22 ग्राम से ज़्यादा नहीं। Ferric subsulfate is present at 20 to 22% by weight, that is 20 gram in 100 ml. Next, the genetic mutation of which of the following gene causes ectodermal dysplasia? ED1 जीन जो होती है, ectodermal dysplasia 1 जीन। ठीक है, ED1 जीन की जेनेटिक म्यूटेशन जो होगी वो हमारी कॉरेस्पॉन्ड करती है विद एक्टोडर्मल डिस्प्लेसिया। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, ये अप्लायंस दे रखा है। ठीक है, इसमें सिंपल पीछे को एक्सपैंड करने को अपने को अप्लायंस बनाया हुआ है, बीच में यहाँ पे एक्सपेंशन के लिए स्प्रिंग दे रखा है, आगे बटन दे रखा है लंबा सा। ठीक है, व्हाट इज इट? It is a fastback appliance. It's a fastback appliance that is used for desalination of the upper molars. This device provides the translation movement of the molars using the predetermined amount of pressure. There is no need for cooperation of the patient for maintaining good anchorage control. The principle of the device is based upon the compression of night eye springs available as जो कि प्रोवाइड करते हैं हमारे को 200 से 300 ग्राम फोर्स, which exert a constant force on the molar. To achieve this result, while still enabling precise control of the tooth movement and ensuring the greatest comfort possible for the patient, an arm is fabricated to fit into a smaller tube that is 1.1 millimeter in diameter, which is soldered to the palatal surface of the bands on the molars that are to be distalized. An open spring is added to the arm that delivers and required force to move the tooth in the desired direction is delivered, which is determined by the arm sliding inside the tube. ठीक है, जो ट्यूब के अंदर आर्म स्लाइड कर रही है वो डिटरमिन करती है कि कितनी फोर्स आपको डिस्टलाइजेशन ऑफ द मोलर्स के लिए चाहिए रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट, ये अप्लायंस है ऊपर से नीचे जोड़ा हुआ है। ठीक है, मैक्सिला से मैंडिबल जोड़ा हुआ है, तो ये किस चीज़ में यूज़ होता है? इट इज़ यूज्ड इन स्लीप एपनिया पेशेंट्स।
ठीक है। द मोस्ट इफेक्टिव एंड बेस्ट स्टडीड ट्रीटमेंट इज positive airway pressure PAP, a small bedside machine that blows air through a mask to prevent your airway from collapsing। ठीक है, मतलब ये ऐसा अप्लायंस है जिसके बीच में एयर पास होने की जगह है। ठीक है। स्लीप अपनिया डेंटल अप्लायंसेस कैन लास्ट अप टू 2 years with continual wear. Some patients may need a replacement as early as 6 months, but that is rarely the case. After 2 years, the mouth guard may get worn out and becomes less effective. तो मतलब 2 साल तक तो अपने पास रहेगा। नेक्स्ट ये हम आँख को स्ट्रेच करके एक टेस्ट कर रहे हैं। आँख को स्ट्रेच करके एक टेस्ट कर रहे हैं। व्हाट इज दिस टेस्ट नोन एज? दिस टेस्ट इज नोन एज बाउस्ट्रिंग्स टेस्ट। ठीक है। बाउस्ट्रिंग्स टेस्ट इज फॉर एग्जामिनेशन ऑफ मोबिलिटी ऑफ लैक्सिटी ऑफ medial canthal tendon and is indicative of naso-orbito-ethmoidal complex fracture. It is Bowstring test और late traction test भी इसको बोलते हैं। ठीक है। और इसके बाद आता है हमारे पास बाय मैनुअल टेस्ट। बाय मैनुअल टेस्ट से हम 2 जगह से पैल्पेट कर रहे हैं। देखो, एक आई के ऊपर से कर रहे हैं और एक नोज के अंदर से कर रहे हैं। इसमें हम पूरा naso-orbito-ethmoidal फ्रैक्चर को चेक कर रहे होते हैं। दिस इज अ बाय मैनुअल टेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, CT इमेज ऑफ द कोरोनल सेक्शन, व्हाट इज द पैथोलॉजी? इसमें हमारे पास एंकाइलोसिस हो रखी है। यहाँ कंडाइल्स को देखना है। कंडाइल्स को देखना है, एकदम ऊपर वाले जो कंडाइलर फॉसा उसके साथ फ्यूज कर चुके हैं लगभग। ठीक है, CT के सेक्शन में। ओके, सो इट इज एंकाइलोसिस। दिस इज अ कोरोनल CT स्कैन शोइंग द बायलेटरल TMJ और बायलेटरल एंकाइलोसिस। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑर्थोडोंटिक अप्लायंस। हमारे को सिंपल पीछे बैंड लगे हुए हैं और आगे एक हमने नकली दांत लगाए हुए हैं। आगे वी हैव गिवन अ प्रोस्थेसिस। व्हाट इज इट? इट इज अ ग्रोपर अप्लायंस। द ग्रोपर अप्लायंस कैन होल्ड ओपन स्पेस फॉर सिंगल मिसिंग टूथ और एज मेनी एज 4 मिसिंग टूथ इन द अपर एंड लोअर डेंटिशन। ठीक है, दैट हैव बीन लॉस्ट ड्यू टू केरीज, एक्सीडेंट और एनी इलनेस। नेक्स्ट वी हैव इमेज दैट इज गिवन। ठीक है, ये एक 17x23 की अपने पास एक्सप्लोरर की अपने को इमेज दे रखी है। तो इसमें जो 23 नंबर होता है वो कर्व्ड होता है ऐसे करके, और 7 जो होता है वो एक शार्प बेंड बनाता है। जो 17 है वो शार्प बेंड बनाता है ऐसे करके। ठीक है, 17 विल मेक अ 7 और जो 23 है दैट विल मेक अ 2। ओके, और बीच में अर्गोनॉमिक डिजाइन है जो भी होता है इनका। नेक्स्ट, विच मसल इज यूज फॉर प्रोट्रूजन ऑफ द मैंडिबल? हमारे पास जो मसल है दैट इज लेटरल टेरिगॉइड, वो यूज होता है इन द प्रोट्रूजन ऑफ द मैंडिबल। अब लेटरल टेरिगॉइड कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? ये देखो, ये यहाँ से निकल रहा है और सीधा आगे जाके फ्यूज कर रहा है। ठीक है, लेटरल टेरिगॉइड यहाँ से निकल रहा है, सीधा आगे जाके फ्यूज कर रहा है। सबसे ऊपर वाला अपने पास टेम्पोरलिस, उसके बाद लेटरल टेरिगॉइड, उसके बाद तीसरा मसल, उसके बाद चौथा मैसेटर। ठीक है, सो लेटरल टेरिगॉइड मसल इट इज़ अ ट्रिपल फंक्शन मसल। इसका काम क्या कि साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन करता है इन द बायलेटरल इंफीरियर बेली ऑफ द लेटरल टेरिगॉइड मसल विद द मीडियल टेरिगॉइड मसल एंड इट रिजल्ट इन प्रोट्रूजन ऑफ द मैंडिबल। ठीक है, जो भी है ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फ्रैक्चर ऑफ मैंडिबल। ठीक है, ये देखो, ईडेंचुलस मैंडिबल दे रखी है और दोनों साइड से टूट गई है, तो उसको आइडेंटिफाई करने को बोल रहा है और इसकी वजह से मैंडिबल जो नीचे को खिंच गई है। सो इट्स अ बकेट हैंडल फ्रैक्चर। इट इज जनरली सीन इन एट्रोफिक रिजेस। दिस फ्रैक्चर इज सीन इन रिजॉल्व्ड बॉडी ऑफ द मैंडिबल इन फ्रंट ऑफ द पोस्टीरियर अटैचमेंट ऑफ द माइलोहायोइड मसल। ओके, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट। सिंपल आपको एक स्केलर दे रखा है, लेकिन ये एक आपका स्पून एक्सकेवेटर की तरह है देखने में, बट इसके एंड पे सरेशंस है, एंड पे सरेशंस है। सो व्हाट इज इट? इट इज अ फाइल स्केलर। क्या ये? फाइल स्केलर। फाइल स्केलर ऑलवेज इज यूज्ड विद अ पुल स्ट्रोक। पुल स्ट्रोक के साथ यूज करते हैं इसको हमेशा। इट क्रशेस एंड फ्रैक्चर्स कैलकुलस इनटू फ्रेगमेंट्स इन द पेशेंट्स एंड इट इज यूज्ड टू रिमूव द बर्निश्ड कैलकुलस। ओके, ऐसा कैलकुलस जिसको आपने बर्निश कर दिया अपने इंस्ट्रूमेंट से, पॉलिश हो गया एक हिसाब से, वहां पे इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द अप्लायंस। ये अप्लायंस अपने पास, ठीक है, सो इट इज यूज इन क्लास 2 मालोक्लूजन। ओके, हर्ब्स अप्लायंस बोलते हैं इसको। ये अप्लायंस देख लो इसको, इट इज अ हर्ब्स अप्लायंस और ये क्लास 2 मालोक्लूजन के अंदर यूज होता है। नेक्स्ट, द स्टेप ए इज व्हाट? एक बहुत लंबी साइकिल दे रखी है हमें। ठीक है, एक बहुत लंबी साइकिल दे रखी है जिसमें सबसे पहले हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं प्रॉब्लम को, फिर हम कंडक्ट कर रहे हैं नीड फॉर असेसमेंट, कलेक्शन ऑफ डेटा, एनालाइजेशन ऑफ डेटा, फिर हम डिटरमिन कर रहे हैं प्रायोरिटीज़ को। प्रायोरिटीज डिटरमिन करने के बाद वी आर डेवलपिंग प्रोग्राम गोल्स, ऑब्जेक्टिव एंड देयर एक्टिविटीज़। ठीक है, फिर उसमें अंदर हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं अवेलेबल रिसोर्सेज को, आइडेंटिफाई करते हैं कंस्ट्रेंट को, आइडेंटिफाई करते हैं ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज को, एंड वी विल गिव द रिसोर्स एंड द कंस्ट्रेंट्स
we will choose the activities that are mostly effective in developing an implementation strategy. फिर ongoing phase के साथ हम क्या चीज़ करेंगे, that is given in A. ठीक है, ongoing चीज़ में हम क्या चीज़ करेंगे, ये पूरी साइकिल दे रखी है हमें. ठीक है, ongoing phase में we will go for implementation, monitoring and evaluation of the strategy. जो भी हमने प्लान बनाया, प्रोग्राम बनाया, उसकी implementation, monitoring and evaluation of the strategy ongoing phase के साथ की जाती है. Next, the following molar dentation in the primary dentation will not lead to what permanent dentation. देखिए यहाँ पे हमारे पास दी हुई है प्राइमरी डेंटेशन में डिस्टल है, ठीक है, पीछे को, ठीक है, डिस्टल जा रही है. सो डिस्टल स्टेप बोल सकते हैं इसको. तो डिस्टल स्टेप सबसे ज़्यादा इजीली टेंडेंसी होती है उसकी कि वो क्लास 2 में जाएगी या फिर वो क्लास 1 में आएगी. ठीक है, बट वो क्लास 3 में बहुत इजीली नहीं जाती है. और यही हमारे को क्वेश्चन पूछा हुआ कि किस में नहीं जाएगी इजीली. तो मीजल स्टेप रिलेशन इन द प्राइमरी डेंटेशन, अगर मीजल स्टेप है तो वो टेंडेंसी हो सकती है, होगी नहीं, हो सकती है टू बी गोइंग इन क्लास 3. ठीक है, इन द परमानेंट डेंटेशन. लेकिन अगर डिस्टल स्टेप है तो बहुत कम टेंडेंसी रहती है क्लास 3 में जाने के लिए. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेंड द मोशन विल दिस बेंड प्रोवाइड द टूथ विल बी व्हाट. देखो ये हमारे पास बेंड दे रखा है. ठीक है, ये अपने पास 3 इंसाइजर्स हैं और ये हम जो है वो वायर में बेंड दे रहे हैं. इसमें कौन सा मोशन जो है वो दांतों के ऊपर लगेगा, तो आंसर विल बी टिपिंग मोशन विल बी ऑन द टूथ. इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्थोडोंटिक मूवमेंट. टिपिंग मोशन जो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्थोडोंटिक मूवमेंट होता है. टिपिंग मूवमेंट्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन अ सिंगल फोर्स दैट इज अ स्प्रिंग एक्सटेंडिंग फ्रॉम अ रिमूवेबल अप्लायंस इज अप्लाइड अगेंस्ट द क्राउन ऑफ अ टूथ. Maximum pressure in the PDL is created at the alveolar crest level and at the root apex level. The loading diagram therefore consists of 2 triangles as shown below. तो यहाँ पे हमारे पास ये लोडिंग डायग्राम है हमारा. ठीक है, इसमें 2 ट्राइंगल अपने को दिख रहे हैं, 2 ट्राइंगल इसमें दिखेंगे लोडिंग डायग्राम में. ठीक है, और इन्हीं 2 ट्राइंगल के बेसिस पे हमारी फोर्स जो है वो बीच में, इनके बीच में, इनके सेंटर ऑफ जहाँ पे रोटेशन बन रहा है वहाँ पे फोर्स लग रही है अपने को. ठीक है, नेक्स्ट कंपैरेटिवली एक इजी क्वेश्चन आया जिसमें पूछा है कि डेहिसेंस कौन सी और फेनिस्ट्रेशन कौन सी है. ठीक है, सो फेनिस्ट्रेशन जो होगी वो हमारी विंडो की तरह होती है और डेहिसेंस होता है मतलब पूरी मार्जिनल बोन से नीचे तक हमारी जो रूट है वो डीन्यूड हो चुकी है ऑफ द बोन. ठीक है, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टूथ इंजरी. टूथ इंजरी दे रखी है, उसमें पूछा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टूथ इंजरी. अब कोई भी इंजरी अगर आपकी नीचे को नहीं हुई है, इंट्रूड नहीं हुई है, एक्सट्रूड नहीं हुई है और किसी भी और एक्सेस में गई है, तो इट इज़ नोन एज लेटरल लग्जेशन. लेटरल लग्जेशन इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टूथ अदर दैन एक्सियल डिस्प्लेसमेंट. Displacement is accompanied by contusion, comminution, and fracture of the alveolar bone. Horizontal forces displace the crown palatally or labially, and the root apex labially or palatally. किसी भी डायरेक्शन में जाएगी. Apart from axial direction, it will be known as the lateral luxation. Next, identify the intermaxillary wiring that is used in the image. आपको 2 डायग्राम दिए हुए हैं, एक पेशेंट बेस्ड डायग्राम दिया हुआ है और उसके नीचे दूसरा डायग्राम दिया हुआ है. इट इज़ सिंपली IV eyelet wiring. This technique, इसमें single 26 gauge stainless steel wire of 6 inches length is taken, which is shaped into an IV loop. The loop of the wire is passed around the neck of the upper first molar tooth, and both the ends of the loop wire are going from buccal to palatal. One along the mesial surface and other along the distal surface of the tooth. ठीक है, indicated in the treatment of multi-fragment fractures and also indicated in the intermaxillary fixation. Next, आइडेंटिफाई द अनॉमली दैट इज सीन इन द इमेज. ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये पूरा रेडियोग्राफ दे रखा है. इसमें मैंडिबुलर अगर आप देखोगे तो उसमें हर एक दांत के नीचे हमारे पास अलग अलग कैल्सिफिकेशन दिखाई दे रही है. हर दांत के नीचे कैल्सिफिकेशन दिखाई दे रही है रूट्स के पास. सो इट इज़ फ्लोरिड सीमेंटो ऑसिस डिस्प्लेजिया. फ्लोरिड सीमेंटो ऑसिस डिस्प्लेजिया FCOD is a condition that occurs in the jawbone. It is especially close to where the teeth are formed. People with FCOD lesion, they develop lesions in the jaws where the spots of the normal bones are replaced with a mix of connective tissue and abnormal bone. यहाँ पे mix of connective tissue हो जाता है और abnormal bone भी आ जाती है, मतलब ऐसे spot में. It is often seen bilaterally symmetrical in the presentation and mostly is asymptomatic. ऐसा दिखाई देगा. ठीक है, नीचे मैंडिबल में देखो इसको, हर एक दांत के नीचे कहीं पे हमारे पास एरिया ऑफ रेडियोपेसिटी है, कहीं पे एरिया ऑफ रेडियोलुसेंसी है, दोनों साइड पे है ये. इट इज़ व्हाट? इट इज़ फ्लोरिड सीमेंटो ऑसियस डिस्प्लेजिया. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द अनॉमली. ठीक है, इसमें ये नीचे वाले दांतों के बारे में पूछा हुआ, ऊपर वाले सब कुछ ठीक है, नीचे वाले में देखो फ्यूजन हो चुकी है 2 दांतों की एक साथ. ठीक है, इट इज़ द केस ऑफ फ्यूजन. टूथ फ्यूजन इज डिफाइंड एज 2 or more than 2 teeth
सेपरेट टीथ जो सेपरेटली डेवलपिंग कर रहे हैं वो बाद में जाके फ्यूज कर जाते हैं. सच अनॉमली मे बी कंप्लीट और इनकम्प्लीट डिपेंडिंग अपॉन द डेवलपमेंटल स्टेज एसोसिएटेड विद द टूथ पार्ट्स. इफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू टूथ पार्ट्स अकर बिफोर द कैल्सिफिकेशन तो कंप्लीट फ्यूजन विल एंश्योर. ओके, नेक्स्ट एक डायग्राम दे रखा है. इट इज़ अ पीजो इलेक्ट्रिक, ऐसे देखने में पता चल रहा है. ओके, नाउ it is a piezoelectric surgical tips. Piezoelectric surgery is based upon high frequency vibration of a metallic tip that is used to selectively cut the bone while the sparing the soft tissues. Okay. उसके बाद एक डिवाइस दे रखा है, उसमें पूछा हुआ है व्हाट इज इट. डिवाइस को ध्यान से देख लो. इट इज बेसिकली अ पेरियोस्कोप. क्या है ये? पेरियोस्कोप है ये. इट इज अ periscope that is used in perioscopy. Perioscopy is a miniature camera with advanced lighting and magnification to see the areas below the gum line. ठीक है, that are treated non-surgically or surgically, जैसा भी करा है उसको. Next, a 42-year-old male patient who underwent discontinuity defect for the posterior mandible ameloblastoma is able to achieve proper mesiodistal position of mandible but cannot maintain it for mastication. What is the prosthesis given for the same? ऐसा पेशेंट है जिसमें कि आपका पोस्टीरियर आपका मैंडिबल काटना पड़ गया है. ठीक है, तो अमीलोब्लास्टोमा की वजह से काट गया है. अब उसमें वो चबाने के टाइम अपना वो मेंटेन नहीं कर पाता ऑक्लूजन. ऐसे नॉर्मली वो ले आता है अपनी पोजीशन पे जितने उसको चाहिए. तो उसमें आप कौन सा प्रोस्थेसिस दोगे? आंसर इज गाइड फ्लैंज प्रोस्थेसिस यू विल गिव. व्हाट विल यू गिव? गाइड फ्लैंज प्रोस्थेसिस इज द प्रोस्थेसिस दैट यू विल गिव. Following mandibular resection, the restoration of the function is usually not possible and prolonged disfigurement is inevitable. Okay, by the use of guide flange, initially followed by prosthetic rehabilitation, function can be restored to normal physiological limits with little disfigurement. And basic rehabilitation objective is to train the mandibular muscles to re-establish an acceptable occlusal relationship so that the patient can adequately control the opening and closing of the mandibular movements. Okay. During this, the initial healing period, following mandibular resection, early prosthodontic intervention by mandibular guide flange and maxillary stabilization prosthesis serve as the purpose of reducing the mandibular deviation. कौन सा दे रहे हम? we are giving mandibular guide flange along with maxillary stabilization prosthesis. This will prevent the extrusion of the teeth and improving the masticatory efficiency of the whole arch. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक सिंपल रेडियोग्राफ दे रखा है. ओके, और ये 5 या 6 साल के बच्चे का रेडियोग्राफ है, 5 से 6 साल के बीच का, क्योंकि इसका परमानेंट फर्स्ट मोलर जो है ऊपर वाला निकल चुका है हल्का हल्का और फुली इरप्टेड नहीं है अभी तक. सो इट इज़ बिटवीन 5 to 6 years. तो इसमें पूछा हुआ है व्हाट, कौन सा दांत इनमें से सक्सीडेनियस टूथ नहीं है? सक्सीडेनियस टूथ वो होते हैं, वो परमानेंट टीथ होते हैं जो कि रिप्लेस करते हैं डेसिडुअस डेंटेशन को. ठीक है, सो कौन से दांत हमारे डेसिडुअस डेंटेशन को बगैर रिप्लेस किए हुए आते हैं? जैसे कि परमानेंट फर्स्ट मोलर हो गया तो 1/6. ठीक है, जो 6 है वो हमारा हमेशा नॉन सक्सीडेनियस टूथ में आएगा. मोलर्स जो परमानेंट मोलर्स है दे आर नॉन सक्सीडेनियस टूथ. ओके, प्री मोलर्स और परमानेंट मोलर्स, परी मोलर्स होते हैं वो हमारे पास सक्सीडेनियस टूथ होते हैं क्योंकि वो हमारे जो प्राइमरी मोलर होता है उसके बाद आते हैं. बट परमानेंट मोलर्स आर नॉट सक्सीडेनियस टीथ बिकॉज दे डू नॉट रिप्लेस एनी प्राइमरी टीथ. सक्सीडेनियस टीथ ओरिजिनेट फ्रॉम द successional lamina, whereas the permanent molars originate from their general dental lamina. जो सक्सीडेनियस टूथ है वो सक्सेशनल लमाइना से आते हैं और परमानेंट मोलर जो होते हैं वो जनरल डेंटल लमाइना से आते हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज द साइंटिफिक रिट्रैक्शन? साइंटिफिक रिट्रैक्शन हमने पिछले पेपर में बात की थी. इट इज़ द रिमूवल ऑफ एन आर्टिकल इन अ जर्नल दैट इज पब्लिश्ड बाय अ पब्लिशर. ठीक है, when a retraction is applied to academic or scholarly publishing article, it indicates that the article was withdrawn from the publication in which it was appeared and after it was published. मतलब उसको पब्लिश होने के बाद वापस लिया गया है. दैट इज नोन एज रिट्रैक्शन. अ रिट्रैक्शन इज इशूड थ्रू द डिसीजन मेड थ्रू पब्लिकेशंस एडिटोरियल बोर्ड. एडिटोरियल बोर्ड को कुछ भी लगता है, उस मतलब कोई उनको लगता है कि कोई डेटा कॉपी किया गया है या प्लेगरिज्म हुआ है या फिर पैसे नहीं दिए बंदे ने, तब वो उसको रिट्रैक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट, एक्सपोजर मस्ट प्रीसीड द डिजीज़. मतलब आपकी एक्सपोजर हुई तो उसके बाद डिजीज़ होनी लाजमी चीज़ है. व्हाट टाइप ऑफ कैजुअल एसोसिएशन दिस इज? इट इज़ नोन एज टेम्पोरल एसोसिएशन. ठीक है, टेम्पोरल एसोसिएशन बिटवीन टू डिसऑर्डर्स और क्लिनिकल प्रॉब्लम्स रेफर टू देयर हाइपोथेसाइज्ड रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ टाइम ऑफ ऑनसेट
most often inferring from a casual or contributory relationship. Exposure must precede the disease. In the most epidemiological studies, this can be inferred कि exposure हुआ उसके बाद disease occur करती है. That is the thing. ठीक है. This is known as temporal association. In studies where exposure and the disease are measured simultaneously, or the exposure is measured after the occurrence of the disease, the temporal association should be evaluated. Next, B-type oxygen cylinder is kept in the dental office for emergency purposes. What is the capacity of this oxygen cylinder? Oxygen cylinder में black body होगी, white shoulder होगा. ठीक है, white shoulder black body. तो इसमें हमारे पास B-type ऑक्सीजन सिलेंडर हम रखते हैं. तो इसमें कितनी हमारे को मिनिमम रखनी पड़ती है ऑक्सीजन? इसका आंसर है 1200 से 1500 लीटर आपको ऑक्सीजन यहाँ पे रखनी पड़ती है. ठीक है. क्लिनिकल पर्पस क्या है? इट इज़ अ कंटेनर डिजाइंड एज अ रिफिलेबल सिलेंडर यूज टू होल्ड कंप्रेस्ड मेडिकल ऑक्सीजन अंडर सेफ कंडीशंस एट हाई प्रेशर. ऑक्सीजन इज यूज्ड एज एसेंशियल लाइफ सपोर्ट गैस फॉर एनेस्थीसिया एंड फॉर थेरेप्यूटिक पर्पसेस. ठीक है. उसके बाद ऑक्सी लाइफ ऑक्सीजन सिलेंडर होता है जो कि 10.2 kH दैट इज 1500 लीटर का अपने पास सिलेंडर होता है. किट में हमारे पास स्टेनलेस स्टील ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, फ्लोएबल एडजस्टिंग क्लिक टाइप रेगुलेटर होता है, ह्यूमिडिफायर बॉटल होती है. ये सारा एक ही किट में आता है. नीजल कैनुला होता है, स्पैनर होता है, प्योरीफाइड मेडिकल ऑक्सीजन उसके अंदर डाली होती है. और वर्किंग टाइम इसका रहता है कि हमें एक बारी अगर चला दिया इसको, तो अगर 8 बजे आपने चलाया तो 8 से 10 घंटे तो है काम कर लेता है. मतलब 8 बजे चलाया तो लगभग ये 4 बजे तक काम ढंग से कर लेगा. ठीक है. Next, pheochromocytoma is a tumor of what? Pheochromocytoma is a tumor of adrenal medulla. Pheochromocytoma or PHEO or PCC, it is a rare tumor of adrenal medulla composed of chromaffin cells. It is also known as pheochromocytes. When the tumor is composed of same cells as pheochromocytoma and develops outside the adrenal gland, it is referred to as paraganglioma. ठीक है. सेम सेल्स होंगे जैसे फियोक्रोमोसाइटोमा में होता है, लेकिन आउटसाइड द एड्रीनल ग्लैंड अगर अकर कर रहा है तो इट विल बी नोन एज पैरागैंग्लियोनोमा. नेक्स्ट, ऑल आर हॉरिजॉन्टल बट्रेसेस ऑफ मैक्सिला एक्सेप्ट व्हाट? फ्रंटल बार इज हॉरिजॉन्टल बट्रेस ऑफ मैक्सिला, ऑर्बिटल रिम इज हॉरिजॉन्टल बट्रेस ऑफ मैक्सिला, पैलेटल बोन्स आर हॉरिजॉन्टल बट्रेस ऑफ मैक्सिला, बट फ्रंटोनेजल इज नॉट द हॉरिजॉन्टल बट्रेस ऑफ मैक्सिला. फ्रंटोनेजल हॉरिजॉन्टल बट्रेस नहीं होती है. हमारे पास दो तरह के बट्रेस होते हैं, हॉरिजॉन्टल बट्रेस और वर्टिकल बट्रेस. हॉरिजॉन्टल बट्रेस जैसे फ्रंटल बार आ गया ये आईब्रोज के ऊपर, दिस इज फ्रंटल बार. ठीक है. उसके बाद आता है इंफ्रा ऑर्बिटल रिम. दिस इंफ्रा ऑर्बिटल रिम इट इज ऑल्सो हॉरिजॉन्टल बट्रेस. ठीक है. फिर आता है हार्ड पैलेट, हार्ड पैलेट का हॉरिजॉन्टल बट्रेस. फिर आता है हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द मैंडिबल. ठीक है. दीज आर ऑल हॉरिजॉन्टल बट्रेसेस. फिर वर्टिकल बट्रेस की बात आती है, वर्टिकल पार्ट ऑफ द मैंडिबल. ठीक है. टेरिगो मैक्सिलरी पार्ट, ये टेरिगो से मैक्सिलरी की तरफ जो जा रहा है, दिस इज अ वर्टिकल बट्रेस. ठीक है. फिर जाइगोमैटिको मैक्सिलरी, एक अंदर टेरिगोइड से मैक्सिलरी की तरफ जाएगा, एक जाइगोमैटिक से मैक्सिलरी की तरफ आ रहा है ये वाला. ठीक है. फिर नेजो मैक्सिलरी, ये नेजो मैक्सिलरी, ये नाक के अराउंड जो जा रहा है, नेजो मैक्सिलरी, दिस वन नेजो मैक्सिलरी. दीज आर द हमारे पास वर्टिकल बट्रेसेस. ओके. फिर बात होती है ट्रांसवर्स बट्रेसेस के बारे में. इसमें अपर ट्रांसवर्स मैक्सिलरी बट्रेस आ जाता है विद ऑर्बिटल वॉल. ठीक है, नीचे वाला. फिर लोअर ट्रांसवर्स मैक्सिलरी बट्रेस आ जाता है, दैट इज द पैलेट. फिर अपर ट्रांसवर्स मैंडिबुलर बट्रेस आ जाता है जो कि दांतों के जस्ट नीचे एल्वियोलर बोन आ जाती है. फिर लोअर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल आ जाता है. दीज आर ऑल द ट्रांसवर्स बट्रेसेस. इसी में वर्टिकल बट्रेस की अगर हम बात करें तो पोस्टीरियर वर्टिकल वॉल, जो ये पोस्टीरियर वर्टिकल वॉल मैंडिबल की चल रही होती है, दिस इज द ट्रांसवर्स बट्रेस. ओके. उसके बाद पोस्टीरियर मैक्सिलरी दैट इज टेरिगो मैक्सिलरी, जो हमारे पास ये यहाँ पे जो मैक्सिला के साथ टेरिगोइड जुड़ रहा है यहाँ पे, ये टेरिगो मैक्सिलरी हमारे पास इट्स अ वर्टिकल बट्रेस. फिर मीडियल मैक्सिलरी, मीडियल मैक्सिलरी कौन सा आएगा? मीडियल मैक्सिलरी जो नाक के साथ चल रहा है. ठीक है. यहाँ पे जो जाके एंड करेगा, नाक के साथ चल रहा है यहाँ पे एंड करेगा, दिस इज मीडियल मैक्सिलरी बट्रेस, जिसमें मीडियल ऑर्बिटल वॉल भी आती है. ठीक है. फिर लेटरल मैक्सिलरी आता है. लेटरल मैक्सिलरी में लेटरल ऑर्बिटल वॉल आएगी. ठीक है. और ये सारी ये ऊपर को जो फ्रंटल के साथ जाइगोमैटिक जुड़ रही होती है, ये लेटरल मैक्सिलरी के अंदर आ जाते हैं. These are all vertical buttresses. Next, the Meckel's cartilage start developing at what? 32 दिन का जब बच्चा होता है तब Meckel cartilage जो है डेवलप करना स्टार्ट करता है with the appearance of condensation of mesenchymal cells and within the mandibular prominence it happens. Next, residual antimicrobial activity of the chlorhexidine in the root canal system remains
फॉर अप टू हाउ मेनी वीक्स? 12 वीक्स तक रेजिडुअल एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी क्लोरहेक्सिडिन की रहती है, 12 वीक्स तक. ऑन वन हैंड क्लोरहेक्सिडिन इनहिबिट्स एक्सपेरिमेंटली इंड्यूस्ड इन्फ्लामेटरी एक्सटर्नल रूट रिजॉर्प्शन. When applied for 4 weeks in infected root canals, it was shown to reduce the bacteria as effectively as calcium hydroxide when applied for 1 week. ठीक है. Next, what should be done to reduce the chances of hypochlorite accidents? हाइपोक्लोराइट एक्सीडेंट के लिए आपको क्या करना होता है? सबसे पहले आप अपनी टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द निडल जो है वो रखेंगे कांस्टेंट. इन एंड आउट मूवमेंट ऑफ द इरिगेटिंग निडल इनटू द कैनाल शुड बी डन, ताकि आगे को परफोरेट ना कर जाए. नेक्स्ट, द परसेंटेज यूज ऑफ क्लोज एंड निडल्स एंड लेटरल वेंट्स निडल्स शुड बी डन. टिप ऑफ द निडल शुड बी 1 to 2 millimeter short of the apex. Never bind the needle into the canal. It will allow the irrigant to pass flow. मतलब रूट के पार चल जाएगा, नहीं तो इरिगेंट उसको ब्लॉक नहीं कर देना है. नेक्स्ट, द मैकल्स कार्टिलेज स्टार्ट डेवलपिंग एट व्हाट? 32 दिन का जब बच्चा होता है तब मैकल कार्टिलेज जो है डेवलप करना स्टार्ट करता है. विद द अपीयरेंस ऑफ कंडेंसेशन ऑफ mesenchymal cells and within the mandibular prominence it happens. Next, residual antimicrobial activity of the chlorhexidine in the root canal system remains for up to how many weeks? 12 वीक्स तक रेजिडुअल एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी क्लोरहेक्सिडिन की रहती है, 12 वीक्स तक. ऑन वन हैंड क्लोरहेक्सिडिन इनहिबिट्स एक्सपेरिमेंटली इंड्यूस्ड इन्फ्लामेटरी एक्सटर्नल रूट रिजॉर्प्शन. व्हेन अप्लाइड फॉर 4 वीक्स इन इन्फेक्टेड रूट कैनाल्स, इट वाज शोन टू रिड्यूस द बैक्टीरिया एज इफेक्टिवली एज calcium hydroxide when applied for 1 week. ठीक है. नेक्स्ट, what should be done to reduce the chances of hypochlorite accidents? हाइपोक्लोराइट एक्सीडेंट के लिए आपको क्या करना होता है? सबसे पहले आप अपनी टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द निडल जो है वो रखेंगे कांस्टेंट. इन एंड आउट मूवमेंट ऑफ द इरिगेटिंग निडल इनटू द कैनाल शुड बी डन, ताकि आगे को परफोरेट ना कर जाए. नेक्स्ट, द परसेंटेज यूज ऑफ क्लोज एंड निडल्स एंड लेटरल वेंट्स निडल्स शुड बी डन. Tip of the needle should be 1 to 2 millimeter short of the apex. Never bind the needle into the canal. It will allow the irrigant to pass flow. मतलब रूट के पार चल जाएगा, नहीं तो इरिगेंट उसको ब्लॉक नहीं कर देना है. Along with this, you will oscillate the needle in the canal, ठीक है, and do not force the irrigant into the canal. ठीक है. Prevention of sodium hypochlorite extrusion. A good proper street line access to the cavity design with adequate coronal preparation should be done. Okay. Use pre-operative periapical radiographs to assess the root canal anatomy. और स्पेशलाइज नीडल जो कि साइड वेंटेड नीडल्स होती हैं उनको यूज़ कर सकते हो. प्रॉपर वर्किंग लेंथ पता होनी चाहिए. स्टॉपर यूज़ करना है, ठीक है, ज़्यादा क्योंकि कभी कभार गलती से वेज भी हो जाती है. ठीक है. डू नॉट वेज द नीडल टिप इनटू द कैनाल एंड इट हैज़ टू बी लूजली प्लेस्ड. अवॉइड यूज ऑफ एक्सेसिव डिजिटल प्रेशर. उंगलियों से ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, स्पेशली विद द थंब. Constant in and out movement of the irrigant needle should be done. Flow back of the solution should be expressed into the canal and it should be observed by you. मैनेजमेंट में क्या करना है? इमीडिएट इरिगेशन ऑफ कैनाल कर सकते हो आप नॉर्मल सलाइन से, डाइल्यूट कर सकते हो सोडियम हाइपोक्लोराइड से. लेट ब्लीडिंग रिस्पॉन्स कंटिन्यू टू फ्लश आउट द इरिटेंट. ठीक है. अगर मैनेजमेंट करनी है तो हमें क्या करना है? सबसे पहले सलाइन से इरिगेट करना शुरू कर देना. उसमें उसको बाहर निकलने देना, जितना भी हमने फ्लश आउट करवाया उसको बाहर निकलने देना, ताकि ईजिली अंदर जो मतलब हमारा हाइप हो गया हुआ है उसका कम से कम इफेक्ट रह जाए अंदर. ठीक है. एडवाइस आइस पैक कंप्रेशन फॉर 24 आवर्स. 15 मिनट के इंटरवल पे हम आइस पैक का कंप्रेशन देंगे टू मिनिमाइज द स्वेलिंग. रिकमेंड वार्म मॉइस्ट कंप्रेसेस आफ्टर 24 आवर्स, दैट इज 15 मिनट के इंटरवल पे देंगे आप. ठीक है. ये 24 घंटे के बाद दोगे. पहले कोल्ड कंप्रेसेस, पहले एक दिन में आप कोल्ड कंप्रेशन दोगे, फिर जो दूसरा दिन होगा उसमें वार्म कंप्रेशन दोगे. प्रिस्क्राइब एसिटामिनोफेन बेस्ड अपॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स फॉर 7 days. प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक कवरेज दोगे 10 दिन के लिए टू प्रिवेंट सेकेंडरी इन्फेक्शन. ठीक है. अमॉक्स दे दोगे, अमॉक्स 250 TDS और मेट्रोनिडाजोल 200 मिलीग्राम TDS इन पेनिसिलिन एलर्जिक पेशेंट. Steroid therapy दोगे for 2 to 3 days for controlling the inflammatory reaction and reassure the patient and provide both verbal and written home care instructions. Next, side ventral irrigation is placed at a distance from working length. How much working length के distance पे रखना चाहिए? Side vented को हम 1 मिलीमीटर के distance पे भी रख सकते हैं, वर्किंग लेंथ से 1 मिलीमीटर ऊपर. लेकिन अगर नॉर्मल हमारी नीडल है तो उसको लगभग 2 से 4 मिलीमीटर के डिस्टेंस पर रखना पड़ता है. साइड वेंटेड इरिगेशन नीडल इज प्लेस्ड एट 1 मिलीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द वर्किंग लेंथ, वेयर एज द ओपन फ्लैट एंडेड नीडल इज टू बी पोजिशन्ड बियॉन्ड 2 मिलीमीटर शॉर्ट ऑफ वर्किंग लेंथ. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू अबाउट टेफ्लॉन कोटेड इंस्ट्रूमेंट? टेफ्लॉन कोटेड इंस्ट्रूमेंट्स आर कोटेड विद फ्लोरोपॉलीमर. ठीक है.
टेफ्लॉन जो होता है दैट इज़ अ फ्लोरोपॉलीमर. इट वॉज नॉट अंटिल 1947 दैट DuPont made a PTFE commercial available under the brand name Teflon. Polytetrafluoroethylene, it is a synthetic fluoropolymer of tetrafluoroethylene that has been used in numerous applications. It is used for non-sticking properties of the coating of the dental instruments. ठीक है. Next, to estimate of the between study variance in random effects, meta-analysis is required by what? देखो हम स्टडी वेरिएंस को इन बिटवीन चेक करने के लिए, रैंडम इफेक्ट्स को चेक करने के लिए मेटा एनालिसिस कर रहे हैं. तो उसके लिए हम कौन से टेस्ट करते हैं? ताउ स्क्वायर टेस्ट करते हैं एंड आई स्क्वायर टेस्ट करते हैं. ताउ टेस्ट एंड आई स्क्वायर टेस्ट. ठीक है. नेक्स्ट, द थीम फॉर टोबैको सेसेशन फॉर 2021 ईयर इज व्हाट? इट इज कमिट टू क्विट. कोविड के टाइम पे जो थीम थी टोबैको सेसेशन की, दैट वाज कमिट टू. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू एविडेंस बेस्ड डायग्राम अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एविडेंस. ठीक है. एविडेंस बेस्ड डायग्राम के हिसाब से हमारा सबसे ज़्यादा जो होता है जिसकी वैल्यू होती है दैट इज सिस्टमिक रिव्यू, उससे कम होती है रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल की, उससे कम होती है कोहोर्ट स्टडी की, और उससे कम होती है केस सीरीज की. नेक्स्ट, अ क्लिनिकल ट्रायल डिजाइन इन विच ईच पेशेंट रिसीव्स बोथ इंटरवेंशंस इज व्हाट? मतलब उसको प्लेसिबो भी मिल रहा है और दूसरा भी मिल रहा है, नॉर्मल ग्रुप स्टडी का भी मिल रहा है. इट इज नोन एज क्रॉस ओवर डिजाइन. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट इज ट्रायंगुलेशन? ट्रायंगुलेशन इज यूज ऑफ वेराइटी ऑफ डेटा सोर्सेज इन अ सिंगल स्टडी. आप वेराइटी ऑफ सोर्सेज ले रहे हो और एक स्टडी का एक इन्फ्रेंस निकाल रहे हो, दैट इज नोन एज ट्रायंगुलेशन. डेटा ट्रायंगुलेशन इज यूज टू स्टडी बाय अ वेराइटी ऑफ सोर्सेज ऑफ स्टडी, नेमली टाइम, स्पेस, पर्सन. ठीक है. इसे बोलते हैं हम डेटा ट्रायंगुलेशन. इन्वेस्टिगेटेड ट्रायंगुलेशन मतलब कि हम एक रिसर्चर के अलावा मल्टीपल रिसर्चर लेते हैं. थ्योरी ट्रायंगुलेशन, हम एक थ्योरी को छोड़ के मल्टीपल थ्योरी से एक एनालिसिस बनाते हैं. ठीक है. Methodological triangulation, it is use of more than one method. ठीक है. Next, number of deaths during the year or mid-year population cross 1000 is known as what? ठीक है. Number of deaths during the year divided by mid-year population into 1000 जो होता है that is a crude death rate. Next, what is defined as an artistic bend in orthodontics? जो second order bend आप देते हो that is known as the artistic bend in orthodontics. Second order bends are made in vertical plane and are used for anchorage preparation for uprighting the teeth. They are also used for paralleling of the roots and elevation or depressing of the certain teeth. ठीक है. second order bends की बात कर रहा है. Next, syndrome X is what? Syndrome X का मतलब होता है कोई भी metabolic syndrome with increased risk of diabetes, उसको बोलते हैं syndrome X. This disease is characterized by clustering of insulin resistance and hyperinsulinemia, and it is often associated with dyslipidemia, that is atherogenic plasma lipid profile. उसमें dyslipidemia हो जाता है. Essential hypertension हो जाती है, abdominal hypertension हो जाती है, abdominal opacity हो जाती है, ग्लूकोज इंटॉलरेंस हो जाता है, या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस हो जाती है. एंड देयर इज एन इंक्रीज रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स, abnormalities of the blood coagulation, higher plasminogen activator inhibitor type 1 and fibrinogen levels. मतलब प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इनहिबिटर टाइप 1 और फाइब्रिनोजन के लेवल्स होते हैं वो डिरेंज कर जाते हैं. हाइपर यूरिसीमिया हो जाता है, प्लस माइक्रो एल्ब्यूमिन्यूरिया हो जाता है, एंड दे ऑल्सो हैव बीन फाउंड रिलेटेड टू द मेटाबॉलिक एक्स सिंड्रोम. नेक्स्ट, बायोसेफ्टी लेवल 4 पैथोजन इज व्हाट? BSL-4 पैथोजन. 4 ऑप्शन दिए, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, लाइम्स डिजीज, इबोला और मीजल्स. जो BSL-4 है दैट इज इबोला. BSL-4 इज इबोला. 4 लेवल्स आते हैं हमारे बायोसेफ्टीज के. ठीक है. BSL के BSL-1 का मतलब होता है कोई कंटामिनेशन नहीं होता, डिफाइंड ऑर्गेनिज्म होते हैं, अनलाइकली टू कॉज द डिजीज. सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे कि हमारे पास ई कोलाई होते हैं. ठीक है. जिनमें मिनिमम पोटेंशियल होता है टू डू अ हैजार्ड टू पर्सनल एंड द एनवायरनमेंट, उसको बोलते हैं BSL-1. BSL-2 का क्या होता है कि कंटेनमेंट रहती है उसकी, मॉडरेट रिस्क रहता है, एंड डिजीज ऑफ वेरिंग सीवियरिटी अकर कर सकती है. इसमें आता है हमारे पास इन्फ्लुएंजा, HIV, लाइम्स डिजीज. एजेंट्स एसोसिएटेड विद ह्यूमन डिजीज एंड पोज मॉडरेट हैजार्ड्स टू द पर्सनल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, दैट इज BSL-2. फिर आती है बात BSL-3 के बारे में. BSL-3 में हाई कंटामिनेंट होता है, एरोसोल ट्रांसमिशन होता है. BSL-3 में एरोसोल ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. सीरियस पोटेंशियली लीथल डिजीज होती है अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो. BSL-3 में हमारे पास आता है ट्यूबरक्यूलोसिस. BSL-4 में मैक्स कंटामिनेटेशन होता है, एक्सोटिक होता है, हाई रिस्क एजेंट्स होते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज होती है जैसे कि इबोला वायरस.
It is dangerous and exotic agents that pose a high risk of aerosol transmission, laboratory infections and life-threatening disease. ठीक है, they pass even through the autoclave with bioseal required in the laboratory room. ठीक है, मतलब ये नॉर्मल ऑटोक्लेव से भी चला जाता है, तो इसमें ऑटोक्लेव में बायोसील रिक्वायर्ड होती है लेबोरेटरी रूम के अंदर. ठीक है, ताकि लेबोरेटरी रूम से बाहर ना निकल पाए, बोला. नेक्स्ट, ट्रायड ऑफ नेल डिस्ट्रॉफी, रेटिकुलेटेड हाइपरपिगमेंटेशन एंड ल्यूकोप्लेकिया आर सीन इन व्हाट? नेल डिस्ट्रॉफी, रेटिकुलेटेड हाइपरपिगमेंटेशन एंड ल्यूकोप्लेकिया, दे आर सीन इन डिस्क केराटोसिस कंजेनाइटा. ठीक है, डिस्क केराटोसिस कंजेनाइटा, DKC, it is a genetically heterogeneous disease of defective telomere maintenance that may demonstrate different patterns of inheritance. It is characterized by the triad of dystrophy of nails, leukokeratosis of the oral mucosa and extensive net-like pigmentation of the skin. Okay. Next, highest chance of malignant transformation is seen in what? Highest chance of malignant transformation, it is seen in erythroleukoplakia. Leukoplakia is considered one of the most common pre-malignant lesions and the subdivision has different malignant transformations. ठीक है, 4 सब डिविजन्स होते हैं हमारे पास. अर्ली या थिन, जिसकी सबसे कम हमारी मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन होती है. फिर होमोजीनियस या थिक, उसकी उससे ज़्यादा होती है. ग्रैनुलर या वेरूसिफॉर्म, इसकी 3rd नंबर पे आती है सबसे ज़्यादा मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन. फिर आता है स्पेकल्ड और एरिथ्रोल्यूकोप्लेकिया. स्पेकल्ड या एरिथ्रोल्यूकोप्लेकिया, इसकी सबसे ज़्यादा मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन के चांसेस रहते हैं. नेक्स्ट, द फ्लोरिड सीमेंटो ऑसियस डिस्प्लेजिया अकर्स मोर कॉमनली इन व्हाट? फ्लोरिड सीमेंटो ऑसियस डिस्प्लेजिया, जो हमने पहले भी क्वेश्चन पढ़ा है और यही रेडियोग्राफिक इमेज हमारे पास दे रखी थी कि हमारा जो रेडियोग्राफ है उसके अंदर हमें जो हर एक रूट है उसके नीचे सीमेंटम की डिपोजिशन दिखाई दे रही है. एरियाज ऑफ रेडियोपेसिटी एंड एरियाज ऑफ रेडियोलुसेंसी आर देयर. ठीक है, तो व्हाट इज इट एसोसिएटेड विद? किन लोगों के साथ ज़्यादातर एसोसिएटेड होता है? तो आंसर इज ब्लैक फीमेल्स के साथ फ्लोरिड सीमेंटो ऑसियस डिस्प्लेजिया जो है वो ज़्यादा एसोसिएटेड होता है. It was described by Melrose et al. For the first time in 1976. It refers to a group of fibro-osseous segmental exuberant lesions that involved multiple quadrants of the jawbone. Although जो हमारा florid cementosseous dysplasia that's most commonly seen in aged black females, the same is not uncommon in Caucasians and Asians. Okay. Next question is cemento-ossifying fibroma. Cemento-ossifying fibroma, it occurs most commonly in who? तो वो फीमेल्स के मैनुअल में आकर करता है सीमेंटोऑसिफाइल फाइब्रोमा. दीज लीजन्स आर स्लो ग्रोइंग एंड दे आर मोस्ट ऑफन सीन इन द 3rd and 4th decade of life. These are in females in prominence. Okay, it has been shown that in Asian populations, ossifying fibromas presented with considerably greater swelling. The mandible is more commonly affected in the maxilla. ठीक है, दैन द मैक्सिला, मैंडिबल ज़्यादा कॉमनली अफेक्टेड होती है इन केसेस में. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑसिफाइंग फाइब्रोमा इज ऑफ ओडोंटोजेनिक एपिथेलियम इन ओरिजिन? सीमेंटो ऑसिफाइंग फाइब्रोमा, इट इज ऑफ ओडोंटोजेनिक एपिथेलियम इन ओरिजिन. सीमेंटो ऑसिफाइंग फाइब्रोमा occurs most commonly in the tooth bearing areas of the jaws. Their resemblance to ossifying fibroma and cemento-osseous dysplasias give the evidence for odontogenic origin. They are derived from the mesenchymal blast cells of the periodontal ligament and they have the potential to form fibrous tissue, cement and bone in combination of such elements. ठीक है. Next, Samomatoid juvenile ossifying fibroma occurs most commonly in what? Samomatoid juvenile ossifying fibroma occurs most commonly in the paranasal sinuses. Samomatoid juvenile ossifying fibroma occurs predominantly in the sinonasal and orbital bones. Next, samomatoid juvenile fibroma occurs most commonly in which age group? तो ये 15 से 30 साल में सबसे ज़्यादा commonly देखा जाता है. Samomatoid juvenile ossifying fibroma is reported more commonly than trabecular juvenile ossifying fibroma and it affects the patients from a wider range, that is 3 months to 72 years of age. 3 महीने वाले बंदे को भी हो सकता है और 72 years एज वाले बंदे को भी हो सकता है. And older mean range of 16 to 33. Older mean range होती है that is 16 to 33. ठीक है. Next, this is not a method to accelerate orthodontic movement. कौन सा नहीं है इनमें से? पहला है इंजेक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन. इट इज़ अ मेथड ऑफ एक्सेलरेटेड ऑर्थोडोंटिक टूथ मूवमेंट. दूसरा है कॉर्टिकोटोमी. येस, इट इज़ अ मेथड. तीसरा है PAOO,
ठीक है। PaOO इज ऑल्सो अ मेथड, लेकिन इंजेक्शन ऑफ प्लेटलेट रिच फाइब्रिन इज नॉट अ फैक्टर टू एक्सेलरेट ऑर्थोडोंटिक टूथ मूवमेंट। देखो, experimental data has shown that the short-term parathyroid hormone injection might be a potential method for accelerating the orthodontic tooth movement, thereby increasing the alveolar bone turnover rate. ठीक है। Next, what is added as the addition parameter in 5 characteristics of Ackermann profit classification? Additional parameter है हमारा aesthetic line of occlusion। ठीक है। दो थिंग्स जो है वो बाद में ऐड की गई हैं, दैट इज एन एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स टू हेल्प मोर एंड मोर एनालिसिस। फर्स्ट इज एस्थेटिक लाइन ऑफ ऑक्लूजन एंड सेकंड इज रोटेशनल एक्सिस और एस्थेटिक लाइन ऑफ ऑक्लूजन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स एक्ट बाय प्रोटीन सिंथेसिस? इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करा के एक्ट करता है? तो आंसर है हमारे पास एरिथ्रोमाइसिन, क्लोराम्फेनिकॉल, जेंटामाइसिन। बट वैंकोमाइसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफरेंट होता है। ठीक है। द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मैक्रोलाइट्स रिवॉल्व अराउंड देयर एबिलिटी टू बाइंड विद द बैक्टीरियल 50S राइबोसोमल सबयूनिट, causing the cessation of the bacterial protein synthesis. Once bound, the drug prevents the translation of mRNA, specifically the growing peptide chain, by preventing the addition of next amino acid by the tRNA. Chloramphenicol acts by inhibiting the protein synthesis. ठीक है। Next, which antibody is formed as a primary response to microbes? Microbes के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी सबसे पहले बनती है दैट इज IgM। M सबसे पहले बनेगी, M से माइक्रोब याद रखना है। IgM antibodies constitute the major component of the natural antibodies and also is the first class of antibodies produced during the primary antibody response. Next, which of the following RNA is found abundantly in the cytoplasm? तो rRNA जो होता है वो सबसे ज़्यादा साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। These are the machines where the proteins are synthesized in the body. ठीक है। Next, which of the following is the main ganglion of the head belonging to autonomous nervous system? Hypothalamus जो होता है that is the main ganglion that is belonging to autonomous nervous system. Next, TENS therapy is based upon which mechanism of pain inhibition? TENS therapy जो है वो gate control theory के ऊपर based है। ठीक है। It is based upon gate control theory. The electrical current stimulates the nerve fibers that carry the signals related to touch. These signals travel to the spinal cord where they are temporarily blocked, and the transmission of the signal is temporarily blocked. ठीक है, जिससे कि पेन की सेंसेशन जो है वो ब्लॉक की जाती है फ्रॉम ट्रैवलिंग इनटू द ब्रेन। ठीक है। नेक्स्ट, Dewey's modification of class 1 malocclusion type 5 is an example of what? Class 1 modification type 5 is an example of mesio version of molars. ठीक है। Next, arrange the following steps of sequence of crown fabrication for single crown preparation. सबसे पहले आप क्या करेंगे? शेड कंपैरिजन करेंगे। That should be made at the beginning of the patient's visit. Try teeth और जो हमारे वैल्यू है वो ड्राई टीथ में ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है वैल्यू बिकॉज ऑफ द डेसिकेशन ऑफ द फ्लूइड्स। ठीक है। सो स्टेप्स ऑफ द टूथ प्रिपरेशन इंक्लूड स्टेज सिलेक्शन, डायग्नोस्टिक वैक्सअप, टूथ प्रिपरेशन, मेटल ट्राई-इन, biscuit try-in and final cementation. Next, Gracie curates are what? Gracie curates आपके पास नंबर 11 और नंबर 12 curate होती है। The Gracie curate are another set of 4 mini bladed curates. इसमें आता है सब जीरो, that is नंबर 1, नंबर 2, that is anterior teeth और premolar को include करता है। नंबर 11 और 12 जो है वो इंक्लूड करता है posterior mesial surfaces. नंबर 13 और 14 जो होता है वो posterior distal surfaces को इंक्लूड करता है। The blade length of these instruments is 50% shorter than the conventional Gracie curates and the blade has been curved slightly upwards. ठीक है। Next, the tooth has a gingival recession of 4 mm on the buccal aspect and 2 mm on the mesial and distal aspect. Which type of gingival recession according to Caro's classification of gingival recession is it? It is type 2 gingival recession. ठीक है। Caro et al. 2011 classified gingival recession based on the assessment of CAL, that's clinical attachment loss, on both buccal and interproximal sides. Recession type 1 में क्या होता है? Recession type 1 में gingival recession with no loss of interproximal attachment is there. Interproximal CEJ was clinically not detectable at both mesial and distal aspects of the tooth. Recession type 2 में क्या रहता है? Type 2 में gingival recession is associated with loss of interproximal attachment. The amount of interproximal attachment loss that is measured from interproximal CEJ to the depth of the interproximal pocket was less than or equal to the buccal attachment loss measured from buccal CEJ to the depth of the pocket. ठीक है। जिसमें क्लिनिकल अटैचमेंट लॉस जो है वो इंटरप्रॉक्सिमल अटैचमेंट पर भी है, वहाँ पे हमारे पास रिसेशन टाइप 2 होती है। रिसेशन टाइप 3 क्या होती है?
gingival recession associated with loss of interproximal attachment. The amount of interproximal attachment loss measured from the interproximal at CEJ to the depth of the pocket was higher than the buccal attachment loss. मतलब interproximally आपका जो attachment loss है वो ज़्यादा है rather than the buccal attachment loss. ठीक है, इसको बोलते हैं हम attachment recession type 3. ठीक है. Next, which of the following is not included in the recent 2017 classification of periodontal diseases? जो रिसेंट 2017 क्लासिफिकेशन उसमें पेरी इम्प्लांट हेल्थ को इंक्लूड किया जाता है, पेरियोडोंटल हेल्थ को इंक्लूड किया जाता है एंड नेक्रोटाइजिंग पेरियोडोंटल डिजीजेस को इंक्लूड किया जाता है. बट एग्रेसिव पेरियोडोंटाइटिस इज नॉट इंक्लूडेड. एग्रेसिव पेरियोडोंटाइटिस इज नॉट इंक्लूडेड इन द रिसेंट 2017 क्लासिफिकेशन ऑफ पेरियोडोंटल डिजीजेस. ठीक है, इन द 2017 classification, aggressive and chronic periodontitis have been clubbed as a single unit of periodontitis, which is further classified based upon stage and grades. Next, the main component of calculus is what? ये नहीं पूछा आपको कि सब जिंजाइवल कैलकुलस है, सुपर जिंजाइवल कैलकुलस है. सिंपली पूछा है कि मेन कंपोनेंट कैलकुलस का क्या होता है. इट इज हाइड्रोक्सीएपेटाइट. इट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ कैलकुलस. क्रिस्टल्स होते हैं हाइड्रोक्सीएपेटाइट के. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से हम इसे देखते हैं. ठीक है, हाइड्रोक्सीएपेटाइट होता है, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉस्फेट, दैट्स 58%. ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉस्फेट इज 58%. उसके बाद आती है बात मैग्नीशियम विट्लोकाइट की, दैट इज कैल्शियम फॉस्फेट फॉस्फेट. कैल्शियम फॉस्फेट फॉस्फेट इज विट्लोकाइट. मैग्नीशियम विट्लोकाइट वो 21% होता है हमारे पास. फिर आता है ऑक्टा कैल्शियम फॉस्फेट, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट. ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट .2H2 दैट इज 12%. फिर आता है ब्रूसाइट. ब्रूसाइट कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट /2H2O होता है. ठीक है, दैट इज 9%. ब्रूसाइट 9% होता है. ऑक्टा कैल्शियम फॉस्फेट इज 12%. मैग्नीशियम विट्लोकाइट 21% एंड हाइड्रोक्सी एपेटाइट इज 58%. ठीक है, नेक्स्ट ईस्टरमैन करेक्शन इज डन फॉर व्हाट? ईस्टरमैन करेक्शन कब की जाती है? जब SNA या तो हाई लो हो सकता है और SN प्लेन जो है दैट SN टू मैक्सिला प्लेन इज नॉर्मल. जब SN टू मैक्सिला प्लेन नॉर्मल होता है और SNA प्लेन इज हाई और लो, तब हम ईस्टरमैन करेक्शन करते हैं. ओके,